ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அது நல்லவர், பரமேஸ்வர் பலா है. மீண்டுமாக இந்த இரண்டாவது நாள் கூடுகைக்கு நான் உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன். इस दूसरे दिन का इस सत्र में हम आपको स्वागत करते हैं. எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன். मैं आशा करता हूँ या विश्वास करता हूँ कि आप सब कोई आनंदित है. ஹல்லேலூயா. உங்களுடைய அன்பிற்கும் உங்களுடைய அழைப்பிற்கும் நான் மீண்டுமாக நன்றி செலுத்துகிறேன். मैं आपके प्रेम के लिए और आपके बुलाहट के लिए मैं बहुत आभारी हूँ. கடந்த நாள் செஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன். मैं प्रभु में ये आशा करता हूँ कि जो भी हमने आपको वचन के द्वारा से पढ़ाया वो सब आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा. है क्या नहीं? ஹல்லேலூயா हालेलुया. இந்த நாள்ல கூட நம்ம ரெண்டு செஷன் எடுக்க போறோம். आज भी हम लोग दो सेशन में हम परमेश्वर के वचन को हम देखने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं. உங்களை எல்லாரையும் சீக்கிரமாக முடித்து வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். आप सबों को जल्दी से जल्दी पूरा करके भोजन खिला के अपने अपने फील्ड में भेजना है करके हमको सूचना मिला. ஏன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு போய் சர்ச் நடத்தணும், ஊழியத்தை பார்க்கணும். कल का दिन आप में से बहुत लोग जाके आराधना चलाना है. அதனால மீதமுள்ள காரியங்களை வேகமாக ரெண்டு செஷன்ல நம்ம பார்த்து முடிக்க போறோம். इसलिए जो है आगे के दो सत्र में हम लोग जो भी बातें हैं उसको देख के प्रार्थना पूर्वक यहाँ से हम विदा होने जा रहे हैं. நம்முடைய கூடுகையின் கருப்பொருள் என்ன? और इस पूरा 2 दिन का इस सभा का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? प्राप्ति के लिए दौड़ो. इसमें एक्सेंट करेक्ट? என்னோட हिंदी கரெக்ட்டா இருக்கா? ये अच्छा उच्चारण सही है. थैंक यू. பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். और प्राप्ति के लिए दौड़ो. நான் ஹிந்தில சொன்னேன், நீங்க தமிழ்ல சொல்லணும். अभी भैया हिंदी में बोले, आप लोग को बोल रहे हैं कि तमिल में आप लोगों को बोलना है. பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். குட். अच्छा. நேத்து என்னென்ன தலைப்புகள்ல பார்த்தோம்? और कल का दिन में हम लोग किन किन बातों को हमने देखा. पहला सत्र में क्या देखा? क्या पहला सत्र में किस विषय के आधार पर हमने देखा? दौड़ना है. மறந்து போகும்படியாக ஓடுங்களா? மறந்துட்டீங்களா? क्या आपने भूल गया? गुड. थैंक यू. बहुत धन्यवाद. और பொறுமையோடு ஓட வேண்டும். धीरज के साथ दौड़ना है. நமக்கு நியமித்த ஓட்டத்திலே ஓட வேண்டும். हमारे लिए जो दौड़ निर्धारित है उसी दौड़ को हमें दौड़ना है. இணைந்து ஓட வேண்டும் और साथ मिलके दौड़ना है. என்று சொல்லி நாம் நேற்று பார்த்தோம். और ये तीनों को कल का दिन में हमने देखा. இன்றைக்கு கூட நாம் தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம். आज भी हम लोग लगातार इसी बात को हम जारी रखेंगे. அடுத்து எப்படி ஓட வேண்டும் என்று வேதம் காண்பிக்கிறது. और आगे हमें किस प्रकार का दौड़ना है करके परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देता है. अनेகர் இந்த உலகத்திலே நம்மை போலவே கிறிஸ்தவ ஓட்டத்தை தொடங்கினார்கள். और हमारे जैसे बहुतों ने मसीह दौड़ में दौड़ को शुरू किया. சந்தோஷமாகத்தான் ஓட்டத்தை ஆரம்பித்தார்கள். वे भी बहुत आनंदित ही इस दौड़ को शुरू किया. எப்படியாவது தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிற இலக்கை நான் அடைந்து தீர வேண்டும் என்கிறதான உறுதியோடு தான் ஆரம்பித்தார்கள். और वे भी प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए दौड़ रखा है, जो मेरे लिए लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को मुझे पूरा करना है करके ही दौड़ा. உற்சாகமாக தொடங்கினார்கள். और बहुत उत्साहित होकर के उन्होंने दौड़ को आरंभ किया. எதிர்பார்த்ததை விட வேகமாகவே ஓடினார்கள். और जो उन लोगों ने अपेक्षा किया था उससे ज्यादा ही उन्होंने दौड़ा. அவர்களை பார்க்கும்போது இவர்கள் எப்படியாவது தேவன் வைத்திருக்கிற தரிசனத்தை நிறைவேற்றி விடுவார்கள் என்று தான் என்ன தோன்றியது. और वे उन लोगों को देखते समय में परमेश्वर इनके लिए जो दौड़ रखा है, दर्शन रखा है, ये सब पूरा कर देंगे करके
करके हम लोग जो है विश्वास करने लायक उनका जीवन था। ஏனென்றால் அவர்களுடைய ஓட்டம் அவ்வளவு நேர்த்தியாக இருந்தது. क्योंकि उनका दौड़ इतना जो है अच्छा और कहीं भी खराब नहीं दिखा। ஏனென்றால் அவர்களுடைய ஓட்டம் அவ்வளவு ஞானம் மிகுந்ததாக இருந்தது. क्योंकि उनका दौड़ इतना ज्ञान से परिपूर्ण था। ஏனென்றால் அவர்களுடைய ஓட்டம் தேவன் மேல் நம்பிக்கையுள்ளதாக இருந்தது. क्योंकि उनका दौड़ में वे परमेश्वर पर भरोसा करके उन्होंने दौड़ा। அவர்களுடைய ஓட்டத்தை பார்க்கும்போது जब हम उनके दौड़ को ध्यान से देखें, எப்படியாவது அவர்கள் தேவனுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்து விடுவார்கள் என்பது போலத்தான் தோன்றியது. वे परमेश्वर के लिए बड़े-बड़े काम अपने दौड़ के दौरान पूरा करेंगे करके जो है विश्वास करने लायक था। தேவனும் கூட அவர்கள் மேல் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். परमेश्वर भी उनका दौड़ पर और उन पर बहुत जो है भरोसा किया। ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே திடீரென்று ஒரு மாற்றம். परंतु उनका जीवन में अचानक एक जो है बदलाव है। நன்றாக ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள். वे अच्छा से दौड़ रहे थे, திடீரென்று பிரேக் போட்டு நின்று और விட்டார்கள். अचानक उन्होंने ब्रेक लगा दिया और अपने जीवन का दौड़ का रफ्तार को कम कर लिया, रोक गया। நின்றதோடு மட்டுமல்லாமல் न केवल उन्होंने रुका ஒரு அபவுட் டர்ன் போட்டு और जो है पीछे भी मुड़ गए। ஒரு கார் யூ டர்ன் போடுவது போல जैसे एक गाड़ी जो है यू टर्न घुमा देती है, वैसे ही उन्होंने घुमा दिया। முன்னோக்கி ஓட வேண்டியவர்கள் जब वो आगे की ओर दौड़ना चाहिए था முன்னோக்கி ஓட ஆரம்பித்து और விட்டார்கள். अभी पीछे की ओर वो दौड़ रहे हैं। நாம் லக்கை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஓட அழைக்கப்பட்டவர்கள். आप और हम जो है लक्ष्य को पाने लायक दौड़ दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। நாம் பின்னிட்டு பார்க்கும்படி ஓட அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. कभी भी हमारी दौड़ में पीछे की ओर हमें देखना नहीं, मुड़ना नहीं है। தேவன் நம்மை கொண்டு வைத்திருக்கிற தரிசனத்தின் மேல் நம்முடைய பார்வை और இருக்குமானால் परमेश्वर ने जो दर्शन हमारे लिए रखा है, उस दर्शन की ओर हमारा दृष्टि होना जरूरी है। தேவன் ஏன் என்னை அழைத்தார், ஏன் என் கரத்தை பிடித்தார் என்கிற அறிவு நமக்கு இருக்குமானால் परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, परमेश्वर ने मेरा हाथ को क्यों थामा है, उस प्रकार का बुद्धि ज्ञान आपके अंदर मेरे अंदर होगा। அந்த உணர்விலே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வாடுவோமானால் यदि उस प्रकार का विचार सोच के साथ यदि हम चले, ஒருபோதும் நாம் பின்னிட்டு பார்க்க மாட்டோம். और कभी भी हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। இந்த நாளிலே இந்த தியானத்தின் வேளையிலே आज का इस सत्र में வழி விலகாமல் ஓடுங்கள் அல்லது பின்னிட்டு திரும்பாமல் ஓடுங்கள் என்கிறதான தலைப்பிலே நாம் தியானிக்க हम போகிறோம். लोग जो है आपका दौड़ में विचलित न हो या पीछे न मुड़े, इस शीर्षक पर अभी हम लोग वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। विचलित न हो और पीछे न मुड़े, வழி விலகாமல் ஓடுங்கள் அல்லது பின்னிட்டு திரும்பாமல் ஓடுங்கள். और हमारे दौड़ में विचलित नहीं होना है या पीछे नहीं मुड़ना है, इसी शीर्षक पर आज अभी वचन हम देखेंगे। ஒரு ஓட்ட பந்தய வீரன் ஓடும்போது जब वो एक जो है दौड़ में तो दौड़ने वाला वीर जो है वो क्या करता है, 200 மீட்டர் தூரம் ஓட வேண்டும். और उनको 200 मीटर का दौड़ को पूरा करना है, எல்லை கோடு அங்கே இருக்கிறது. और उनका लक्ष्य का निर्धारण उतना दूर में है। இங்கிருந்து நன்றாக ஓட்டத்தை ஆரம்பித்து अभी वो अपना दौड़ को बहुत अच्छा से वो शुरू करता है, வேகமாக ஓடியவள் और वो बहुत रफ्तार से दौड़ रहा है। எல்லை கோட்டின் அருகிலே போய்விட்டார். और जब वो अपनी जो है दौड़ का लक्ष्य के पास पहुंच गया, இன்னும் 2 அடி தூரம் தான் அங்கே बस இருக்கிறது. अभी 2 कदम ही बाकी है वो अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए। அந்த நேரத்திலே அவன் பின்னிட்டு பார்த்து இந்த பக்கம் ஓடி வருவானானால் அவனை என்ன சொல்லுவீர்கள்? अभी वो अपने लक्ष्य के 2 ही कदम पहुंचा है, 2 ही कदम बाकी है, उस समय में वो अचानक पीछे मुड़ के भाग के इधर वापस आएगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? அட முட்டாள் பயலே என்று சொல்லுவார். अभी हम लोग बोलेंगे ये बड़ा मूर्ख करके कहेंगे। இன்னும் 2 அடி போயிருந்தனா நீ ரீச் பண்ணிருக்கலாம். अभी 2 कदम यदि और रख दिया होता तो वो तो जो है तुम अपना लक्ष्य को पार कर दिया होता। இவ்வளவு நாள் நேர்த்தியாக ஓடிவிட்டு अभी इतने दिन इतना मेहनत करके इतना दौड़ में आपने कली किया, अभी अपना दौड़ को खराब कर दिया। வெற்றி பெற போகிற நேரத்திலே பின்னிட்டு வந்து விட்டாயே. अभी जो है लक्ष्य को पाने का उस समय में तुम पीछे मुड़ के आ गया। அதே போன்ற நிலைமையிலே ஊழியத்திலும் நமக்கு ஏற்படலாம். इसी प्रकार हमारे सेवकाई के दौड़ में भी होने का संभावना
भावना है। அர்ப்பணிப்போடு கூட தான் ஓட்டத்தை हम ஆரம்பித்தோம். लोग जो है एक अर्पणता के साथ इस दौड़ को शुरू किए தேவன் மேல் நம்பிக்கையோடு கூட தான் இத்தனை நாட்கள் ஓடினோம். और हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा के चलते ही इस दौड़ को हमने आरंभ किया। ஆனால் பல நேரங்களிலே நம்மையும் பின்னிட்டு இழுக்கிற சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நேரிடும். हमारे हमें भी पीछे की ओर खींचने लायक कुछ बातें, आकर्षित करने लायक कुछ बातें हैं, वो हमारे दौड़ को पीछे की ओर दौड़ने के लिए विवश कर देता है। அப்படி பின்னிட்டு இழுக்கிற காரியங்களுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை பார்ப்போமானால் यदि हमें पीछे की ओर आकर्षित करने वाली बातों पर हम ध्यान दें, हमारे आगे के दौड़ को छोड़ के पीछे की ओर आने के लिए कोशिश करेंगे, நாம் லக்கை நோக்கி முன்னிட்டு ஓடாமல் यदि आप जो है अपना लक्ष्य की ओर आगे न बढ़ेंगे, சத்ரு காண்பிக்கிற பின்னிட்டு பார்க்கிற பாதையிலே வழி விலகி ஓட ஆரம்பித்து விடுவோம். अभी हम लोग जो है शत्रु जो रखा है उस दौड़ में पीछे की ओर मुड़ के आने वाले बन जाएंगे। அதைத்தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கலாத்திய திருச்சபைக்கு எழுதும்போது இப்படியாக எழுதுகிறார். पौलुस जो है गलातियों की कलीसिया के लिए जब लिखता है उस समय में वो इस प्रकार लिखता है। எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் और गलातियों की पत्री को जरा खोल लीजिएगा, 3வது அதிகாரம் उसका 3रा अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 3வது வசனம். और उसका 3रा अध्याय उसका 3रा वचन। 3வது அதிகாரம் 3வது வசனம். 3रा अध्याय 3रा वचन, गलातियों की पत्री 3रा अध्याय 3रा वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? ஆவியினாலே ஆரம்பம் பண்ணின நீங்கள் यहाँ पर गलातियों के कलीसिया के विश्वासी से पौलुस कहता है, आत्मा में तुमने अपना आत्मिक दौड़ को आरंभ किया, இப்பொழுது மாம்சத்திலே முடிவு பெறப் போகிறீர்களோ? क्या अभी तुम जो है अपने शरीर में अपना दौड़ को अंत करोगे? ஆவியினாலே தான் நம்முடைய ஓட்டம் ஆரம்பமானது. अभी हमारे आत्मिक दौड़ का शुरुआत आत्मा में था। தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆட்கொண்டபடியினால் தான் இந்த ஓட்டத்தை நாம் துவங்கினோம். और परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के चलते ही इस दौड़ को हमने शुरू किया। ஆவியானவருடைய நடத்துதலின்படினால் தான் இம்மட்டுமாக நாம் ஓடி வந்திருக்கிறோம். और आप परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के चलते ही हम लोग अभी तक इस दौड़ में यहाँ तक हमने पहुंचा। இத்தனை தூரம் நாம் ஆவியானவரோட துணையோடு கூட ஓடி வந்தது நல்லது. और अभी तक आत्मा के पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा यहाँ तक हमारे दौड़ में आए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। துவக்கம் எப்படி முக்கியமானதோ जैसे हमारा शुरुआत बहुत जरूरी है, அதே போலவே நம்முடைய முடிவும் மிகவும் முக்கியமானது. उसी प्रकार हमारा अंत भी सही होना जरूरी है। இன்னும் வேதம் சொல்லுகிறது, यहाँ पर बाइबल बतलाती है, ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கிலும் किसी भी काम का शुरुआत से அதன் முடிவு நல்லது. और उसका अंत जो है वो मान्य रखता है या भला है। அதன் முடிவு மிகவும் கவனிக்கப்பட வேண்டியது. और जो है हर चीजों का अंत कैसे होता है वो बहुत ध्यान देने लायक है। ஆக எவ்வளவு வேகமாக நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீர்கள் என்பதை காட்டிலும் आज जितने रफ्तार में आपने अपने आत्मिक जीवन को शुरू किया वो मान्य नहीं रखता है, எந்த அளவிற்கு உண்மையுள்ளவர்களாக ஓட்டத்தை முடிக்கிறோம் என்பதும் அவசியம். और जितने वफादारी के साथ ईमानदारी के साथ हम अपनी दौड़ को अंत करते हैं इसी पर अब मान्य रखता है। அதைத்தான் பவுல் இங்கே கலாத்திய திருச்சபையின் மக்களுக்கு சொல்லுகிறார். इसी को पौलुस यहाँ पर उस गलातियों के उस कलीसिया के विश्वासियों को लिखता है। அவர் உலக பிரகாரமான மனிதர்களை பார்த்து பேசவில்லை. यहाँ पे पौलुस संसार के दुनियादारी वालों को देख करके इस वचन को नहीं कहता है। அநேக நேரங்களிலே நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உலகம் தான் தவறாக இருக்கிறது என்று और சொல்லி. कई बार हम लोग सोचते हैं कि दुनिया वाले वे जो है शरीर में दौड़ने वाले करके हम सोचते हैं, உலகத்தின் மனிதர்கள் தான் வேறு வேறு பாதையிலே நடக்கிறார்கள் என்று நாம் யோசித்துக் हम கொண்டிருக்கிறோம். लोग ये सोचते हैं कि दुनिया वाले जो है कोई जो है छल कपट करके जी रहा है करके हम लोग सोचते हैं। ஆனால் பவுல் இங்கே கலாத்திய திருச்சபையை பார்த்து यहाँ पर पौलुस गलातियों के कलीसिया के विश्वासी को देख के लिखता है, என்னுடைய ஆரம்பத்தை நான் பார்த்திருக்கிறேன். आज तुम्हारा शुरुआत को मैंने देखा
देखा நீங்கள் ஆவியிலே வைராக்கியமாய் ஆரம்பம் பண்ணினவர்கள் और ये गलातियों के कलीसिया के विश्वासियों आप लोग जो है जब अपना आत्मिक दौड़ को आत्मा में शुरू किया இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து இப்போது உங்கள் நிலைமையை கேள்விப்படுகிறேன் अभी अभी इतने साल बीतने के बाद आपका अंत का जो दौड़ है उसके बारे में मैं सुन रहा हूँ நான் கேள்விப்படுகிற சங்கதிகளை பார்க்கும்போது जब मैं आपकी चर्चा जो सुनता हूँ सुनते समय में இன்றைக்கு மாம்ச பிரகாரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் अभी आप लोग जो है शारीरिक जो है शरीर पर दौड़ रहे हैं நம்முடைய ஓட்டம் மாம்சத்திற்குரிய ஓட்டம் அல்ல हमारा दौड़ मांस का जन शरीर का दौड़ नहीं है நம்முடைய ஓட்டம் ஒரு ஆவிக்குரிய ஓட்டம் हमारा दौड़ एक आत्मिक दौड़ है அதை ஒருபோதும் மாம்ச பலத்தினாலே ஓடி முடிக்க முடியாது हमारे दौड़ को शरीर के बल ताकत से हमें दौड़ के पूरा नहीं कर सकेंगे மாம்ச சிந்தை சொல்லுகிற அறிவின்படி ஓடி முடிக்க முடியாது हमारे जो है हमारे शरीर के अभिलाषा को लेकर के हमें दौड़ को पूरा नहीं कर सकेंगे ஆவியானவர் துணை இல்லாமல் ஒருவேளை நம்முடைய ஞானத்தினால் சில காரியங்களை செய்துவிட முடியும் पवित्र आत्मा के सहायता बिना कुछ कुछ बातों को हम अपनी बुद्धि से हम प्राप्त कर सकते हैं நம்முடைய மாம்ச பலத்தினாலே கொஞ்ச தூரம் ஓடிவிட முடியும் हमारे शरीर के ताकत के चलते थोड़ा दूर हम दौड़ सकेंगे ஆனால் ஆவியானவருடைய அனுக்கிரகம் இருக்கும்போது மட்டுமே जब पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा நாம் வழி விலகாமல் ஓட முடியும் और हमें दौड़ में विचलित नहीं होंगे அல்லது பின்னிட்டு பார்க்காமல் ஓட முடியும் और ना हम पीछे की ओर नहीं मुड़ेंगे அல்லேலூயா हालेलुया இந்த நாளிலே ஒரு விஷயம் யோசித்து பார்ப்போம் यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें एक बात ध्यान दें நம்முடைய பணித்தலங்களிலே நம்முடைய ஊழியத்தை எப்படி நாம் ஆரம்பித்தோம் हमारे जो है कार्य क्षेत्र में जब हम लोग सेवकाई को कैसे हमने शुरू किया ஆரம்பித்த நாட்களிலே இருந்த ஆவியின் வைராக்கியம் இன்றைக்கும் அப்படியே இருக்கிறதா என்று யோசித்து பார்ப்போம் जरा सा आप अपने आप को जांचिएगा जब मैंने शुरू किया था आत्मिक दौड़ या सेवा उस समय में जितना धून के साथ मैंने शुरू किया या दौड़ा आज वो धून है या नहीं அல்லது ஆவியானவரை புறந்தள்ளி விட்டு இன்றைக்கு மாம்சத்தின்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோமா என்று யோசித்து பார்ப்போம் उन दिनों में आत्मा का अगुवाई को लेके हम दौड़ते थे आज क्या आप अपनी बुद्धि से दौड़ रहे हैं இதில் இருக்கிற ஒரு ஆபத்து என்னவென்றால் यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर डेंजर एक भयानक बात यहाँ पर क्या है நாம் மாம்சத்தில் ஓடும்போது கூட यहाँ पर मान लीजिए कि हम शरीर में दौड़ने वाले கொஞ்ச रहेंगे நாளைக்கு थोड़ी दिन के लिए நாம் ஆவியின்படி ஓடுகிறது போலத்தான் हम காட்சியளிக்கும் लोग आत्मा में हो दौड़ रहे करके ही दिखाई पड़ेगा கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது நம்மை வஞ்சித்து பின்னிட்டு பார்க்க வைத்துவிடும் और कुछ दिन में वो हमें इतना धोखा देगा देख करके हमें पीछे की ओर मोड़ने के लिए विवश कर देगा ஆகவேதான் இயேசு சொன்னார் इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 62வது வசனத்திலே लूका रचित सुसमाचार 9:62 में यीशु ने कहा கலப்பையின் மேல் கை வைத்துவிட்டு जो हल के ऊपर हाथ रख करके பின்னிட்டு பார்க்கிறவன் जो पीछे मुड़ के देखेगा தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை वो कभी भी परमेश्वर का राज का लायक नहीं रहेगा அவன் கலப்பையின் மேல் கை வைத்தது நல்லது और वो हल के ऊपर उन्होंने हाथ रखा वो बहुत अच्छी बात है இவ்வளவு தூரம் உழுதது நல்லது अभी तक जो है हल को लेके उसने जुताई किया वो अच्छा ஆனால் விதைத்து அறுவடை செய்ய வேண்டிய நேரத்திலே और वो जोतने के बाद रोपना चाहिए कटनी काटना இது चाहिए நமக்கு சரிப்பட்டு வராது अभी वो सोच लिया जोतने के बाद सोच लिया कि नहीं ये काम ठीक नहीं है இதனால எனக்கு ஒரு பலனும் இல்லை என்று சொல்லி अभी इसके द्वारा मुझे कुछ लाभ नहीं है करके वो सोच लिया கலப்பையை அப்படியே போட்டுவிட்டு பின்னிட்டு போகிறவன் தேவ ராஜ்யத்தை பெற முடியாது என்று இயேசு சொல்லுகிறார் जो हल को खेत में छोड़ के ये काम हम नहीं करेंगे करके वापस जाता है वो प्रभु यीशु ने कहा वो मेरे लायक सेवक नहीं है இயேசு எந்த சூழ்நிலையிலே அந்த வசனத்தை சொன்னார் प्रभु यीशु मसीह किस संदर्भ में उस वचन को कहा அதற்கு முந்தைய வசனங்களிலே 57 முதல் 62 வரை உள்ள வசனங்களை வீட்டிலே வாசித்து பாருங்கள் और घर में जाके 57 वचन से लेके 61 वचन तक पढ़ के देखिएगा அங்கே 3 பேரை இயேசு சந்திக்கிறார் और वहां पर 3 लोगों को प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात हो रहा है ஒரு மனிதன் இயேசுவை பார்க்கிறான் और एक मनुष्य जो है यीशु मसीह से भेंट कर रहा है அவருடைய ஊழியத்தை
பார்க்கிறான். और यीशु मसीह का सेवा को देख रहा है அவரை பார்த்தால் நல்ல மனிதர் போல தெரிகிறது. और यीशु मसीह को देखते ही उसको समझ में आता है तो ये बहुत अच्छा इंसान है அவரோடு கூட தன்னை இணைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறான். और वो चाहता था यीशु मसीह के साथ हम भी जुड़े அவரிடத்துல வந்து சொல்லுகிறான், और यीशु मसीह से आके कह रहा है இயேசுவே நீர் எங்க போனாலும் நான் கூடவே வரேன். वो कहता है यीशु मसीह आप जहां कहीं भी जाएंगे हम आपके साथ साथ रहेंगे உம்மை விட்டு பிரியறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்ல. और आपसे जो है ना आपको छोड़ के जाने को आपको मन नहीं करता है அவனுடைய எண்ணம் நல்லது, और उसका विचार अच्छा है இயேசுவிடத்திலே வந்தது நல்லது. और वो यीशु के पास आया वो भी अच्छा है ஆனால் இயேசு ஒருபோதும் நம்முடைய வார்த்தையை பார்த்து அவர் பேசுகிறதில்லை, அவர் நம்முடைய உள்ளத்திலே என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்த்து பேசுகிறார். जरा ध्यान दीजिएगा यीशु मसीह हमारे जो है हम जो कहते हैं उसके अनुसार वो निर्णय नहीं लेता है परंतु हम क्या सोचते हैं उसको लेकर के वो जो है काम 58வது வசனத்திலே இயேசு சொல்லும்போது, और वो 58 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा நரிகளுக்கு குழிகள் உண்டு, और लोमड़ी के लिए मांद है ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகள் உண்டு, और जो है पक्षियों के लिए बसेरा है ஆனால் மனுஷகுமாரனுக்கு தங்குறதுக்கு கூட இடம் இல்ல. और मनुष्य का पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं है அவனுடைய எண்ணம் இயேசு கூட போனா ரொம்ப சந்தோஷமா வாழலாம் என்று நினைத்து வந்தான். वो क्या सोच रहा था यीशु मसीह के साथ साथ हम चलेंगे हमको बहुत कुछ मिलेगा இவர் இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கிறாரே, இவர் ரொம்ப நல்ல இடத்துல தங்கி இருப்பார்னு நினைச்சிட்டு வந்தான். और यीशु मसीह इतना बड़े बड़े काम कर रहे हैं इसका मतलब इनके पास बहुत कुछ होगा इसलिए इनके पास जाएंगे तो हमको भी अच्छा अच्छा जगह मिल जाएगा ஆனால் இயேசு எனக்கு வீடே இல்ல, நீ ஏன் கூட வர்றியா அப்படின்னு கேக்குறான். और वहां पर यीशु मसीह ने ये पूछा बेटा मेरे लिए कोई घर नहीं है कोई घर द्वार नहीं है क्या मेरे पीछे तुम आना चाहते हो करके प्रभु ने कहा அதை கேட்ட மாத்திரத்திலே அவன் என்ன ஆனான் என்று அங்கே எழுதப்படவில்லை. और उसको सुनने के बाद उस जवान ने क्या निर्णय लिया उसके बारे में वहां पर बाइबल वर्णन नहीं करती है இவர் கூட போனா நல்லா இருக்கலாம்னு நினைச்சேன். और वो जवान ऐसा सोचा होगा कि इनके पीछे चलेंगे हमारा भी जीवन बन जाएगा हमारा भी घर द्वार बन जाएगा करके वो सोच के आया होगा ஆனா இவர் வீடே இல்லன்னு சொல்றாரு, இவர் கூட போய் அலையிறதுக்கு நான் என் வீட்டுக்கே போறேன் என்று வீட்டுக்கு போய்விட்டான். अभी वो व्यक्ति इनके पास घर द्वार है ही नहीं है इनके पीछे चलने से हमारा क्या होगा इसलिए हम क्या करेंगे हम अपना काम में चले जाएंगे करके वो पीछे चले आया இயேசு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறார். अभी यीशु मसीह और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं இன்னொரு மனிதனை और பார்க்கிறார். वहां पर एक और मनुष्य यीशु मसीह से भेंट कर रहा है அவனை பார்த்தால் இயேசுவை உண்மையாய் பின்பற்றி வருவது போல தெரிகிறது. और उनको देखते समय में लग रहा है कि ये सचमुच जो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है இயேசு அவனை கூப்பிடுகிறார், நீ என்னை பின்பற்றி வா. अभी यीशु मसीह उनको देख के बोल रहे हैं कि तुम मेरे पीछे दौड़ो அவன் சொல்லுகிறான், நான் இப்போது வர மாட்டேன், எங்க அப்பா மரித்ததுக்கு அப்புறம் வருகிறேன். अभी वो कह रहा है अभी मैं आपके पीछे नहीं दौड़ूंगा मेरे पिताजी को मरने के बाद उनको गाड़ने के बाद मैं आऊंगा நான் அடக்கம் பண்ணிவிட்டு வருகிறேன் என்று और சொல்லுகிறான். मेरे पिताजी मर जाएंगे उनको गाड़ दूंगा दफन कर दूंगा उसके बाद आपके पीछे चलूंगा நல்ல விஷயம் தானே. ये भी बहुत क्या अच्छी बात है या नहीं करा अच्छा बात नहीं है நம்ம பெற்றோரை கனம் பண்ணணும்ல. क्या हम अपने माता पिता को आदर करना है कि नहीं அவன் சொன்னது நல்ல விஷயம் தானே. क्या वो जवान ने जो कहा है वो अच्छा कहा है या खराब कहा அப்பாவை நான் அடக்கம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வரேன்னு தானே சொல்றான். उसने कहा मेरे पिताजी जो मर जाएंगे मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार का काम करके मैं आऊंगा அங்கே அவனுடைய தகப்பன் மரித்து போயிருக்கவில்லை. अभी वो उस जवान का पिता अभी मरा नहीं है वो जिंदा है அங்கே அவன் தகப்பனுடைய சவப்பெட்டியிலே படுக்க வைத்துவிட்டு அங்கே பக்கத்திலே நின்று கொண்டிருக்கும் போது இயேசு கூப்பிடவில்லை. अभी वो जवान जो है उनके पिताजी मर गए हैं और मरने के बाद उनको बक्सा में रखा गया है अभी उनको गाड़ने जा रहे हैं उस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं बुलाया அந்த வசனத்தை படிக்கும் போது நாம் தவறாக புரிந்து और கொள்ளக்கூடாது. जब हम उस वचन को पढ़ते समय में गलत अर्थ नहीं लगाना है யூதர்களுடைய பாரம்பரியத்தின்படி यहूदियों के परंपरा के अनुसार ஒருவேளை இந்த மனிதன் அந்த குடும்பத்துடைய மூத்த குமாரனாய் இருந்திருப்பான். अभी ये जो जवान है जिनको प्रभु ने कहा मेरे पीछे दौड़ो शायद वो उस घर का पहला बेटा होगा அப்படி இருக்கும் பட்சத்திலே यदि उस घर का पहला बेटा हो तो அந்த மூத்த குமாரன் और वो बड़ा बेटा தன் தகப்பன் மரித்த பிறகு செய்ய வேண்டிய சில கடமைகளை செய்தால்தான் और वो जब उनका पिता का मृत्यु हो जाएगा उनका अंतिम संस्कार का कार्य को
बड़ा बेटा को ही करना है அவனுக்கு தகப்பனுடைய சொத்திலே பங்கு கிடைக்கும். और वो अंतिम संस्कार का काम बड़ा बेटा कर देगा तो घर का मुखिया भी वो माना जाएगा और पिता का जो है धन दौलत जो भी है वो सब बड़ा बेटा को मिलेगा। ஆக இந்த மனிதனுடைய மனதிலே இருந்தது என்ன? अभी इस मनुष्य के विचार क्या है? இந்த உலகத்திலே எனக்கு தேவையான சொத்துக்களை நான் சேர்த்து விட்டு அப்புறமாக வருகிறேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான். अभी ये क्या सोच रहा है? प्रभु इस दुनिया में जीने के लिए हमको जो भी पैसा का जरूरत है, माल का जरूरत है, वो सब माल इकट्ठा कर लेंगे, हमारे पिताजी मर जाएंगे, हमारा हिस्सा मिल जाएगा, उसको ले लेंगे, उसके बाद हम आपके पीछे चलेंगे। அவனும் பின்னிட்டு பார்த்து போய்விட்டான். और वो भी पीछे देख करके वो भी चला गया। ஆக முதலாவது வந்தவன் இயேசுவிடத்திலே வந்தான், நல்லா இருக்கலாம் என்று வந்தான், அவனும் பின்னிட்டு போய்விட்டான். और पहला व्यक्ति यीशु के पास आया, आके यीशु के पास आने से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा रास्ता अच्छा हो जाएगा करके आया, वो पीछे मुड़ गया। இரண்டாவது வந்தவன் உலகத்திலே நான் ரொம்ப சேஃபா ஆனது பிறகு வர்றேன்னு வந்தான், அவனும் போய்விட்டான். और दूसरा व्यक्ति ने ये सोच के आया कि मेरा पिता का घर द्वार बेचा जाएगा, वो आपका पैसा मिल जाएगा, उसके बाद हम आएंगे करके वो भी नहीं आया, वो भी पीछे चला गया। இயேசு மீண்டும் நடந்து போகிறார். अभी भी यीशु से आगे बढ़ रहे हैं இன்னொரு மனிதனை பார்க்கிறார். और वहां पर एक और मनुष्य के साथ उनका मुलाकात हो रहा है அவன் சொல்லுகிறான், और वो कह रहा है இயேசுவே ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க, अभी यीशु से दोनों तो आपको छोड़ के पीछे लौट गए, நான் உம்மை பின்பற்றி வருகிறேன், मैं आपके पीछे बोलूंगा, ஆனால் ஒரு கண்டிஷன், परंतु एक शर्त है, எங்க வீட்டுல போய் अभी मैं अपने घर में जाऊंगा, எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டு मैं हमारे घर के कुटुंबियों को सब लोगों को बाय बाय करके எங்க आऊंगा, சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு अब सारे रिश्तेदारों के पास जाऊंगा, நண்பர்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு मेरे सारे दोस्तों से मुलाकात करूंगा, அப்புறமா வர்றேன்னு मैं சொல்றான். उसके बाद बाय बाय करके मैं आऊंगा। அதுக்கு தான் இயேசு சொல்லுகிறார், इसलिए वहां पर यीशु मसीह कहते हैं கலப்பையின் மேல் கை வைத்து अभी விட்டு तुमने हल के ऊपर हाथ रखा है பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் और पीछे मुड़ के देखने वाला कोई भी इंसान தேவ हो, ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை. और वो परमेश्वर का राज का लायक नहीं இந்த है। சமுதாயம் என்ன சொல்லும், और ये हमारा जो है समाज क्या कहेगा, என்னுடைய குடும்பத்தார் என்ன சொல்லுவார்கள், हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, என்னுடைய நண்பர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள், मेरे दोस्त क्या कहेंगे அவர்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன, और उनका विचारधारा क्या है। இதையெல்லாம் கேட்டுவிட்டு और ये सारे बातों को समझने के बाद தேவனை நான் எப்படி பின்பற்ற போகிறேன் என்பதை நான் முடிவு செய்ய முடியாது. और उसके बाद अब परमेश्वर के पीछे चलना है या नहीं चलना है करके निर्णय लेना नहीं अच्छा नहीं है या उचित नहीं है। இந்த மூன்று பேரும் இயேசுவிடத்தில் வந்தார்கள். ये तीनों जो है यीशु के पास आया அவரோடு போக வேண்டும் என்கிற ஆசை இருந்தது, और उनके संग चलना है करके उनके अंदर इच्छा था, ஆனால் ஓட்டத்தை தொடர முடியாமல் பின்வாங்கி और போனார்கள். वे अपना दौड़ को आगे जारी नहीं रख सका, तीनों लौट के चला गया। இன்றைக்கு திருச்சபையாக, आज आप लोग जो है परमेश्वर की कलीसिया தேவ ஊழியர்களாக, और परमेश्वर के दास दासी மிஷனரிகளாக और मिशनरी लोग நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மூன்று காரியங்கள். हमें जो है तीन बातें हमें याद रखने का जरूरत है। இயேசுவிடத்தில் வந்தால் என்ன கிடைக்கும் என்பதை வைத்து நாம் இயேசுவின் ஓட்டத்திலே ஓட முடியாது. आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भाई और बहन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना? हम यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु की सेवा हम करेंगे, हमें क्या मिलेगा उस विचार के साथ कभी सेवा नहीं करना है, यीशु के पीछे नहीं चलना है। என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சம்பவிக்கிற சுக துக்கங்கள் அல்லது நான் சேஃபா எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுகிற பொருட்கள் என்னுடைய ஓட்டத்தை தீர்மானிக்க முடியாது. और जो कुछ मैं कमा के कल के भविष्य के लिए मैं कमाऊंगा, कमा के रखूंगा और वो मेरे लिए सुख देगा, सुविधा देगा करके उस प्रकार का विचार भी हमारे अंदर नहीं रहेगा। என்னை சுற்றி இருக்கிற பிற மனிதர்களுடைய வார்த்தையை வைத்து என்னுடைய ஓட்டத்தை நான் ஓட முடியாது. और हमारे अगल बगल के लोगों के विचारधारा क्या है, उनके विचार को लेके भी हम दौड़ नहीं सकते हैं। நான் ஆவியிலே ஆரம்பம் பண்ணது உண்மையானால், यदि मैं आत्मा में अपने दौड़ को आरंभ किया हो தேவ ஆவியானவரால் ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தப்படும் போது மட்டுமே और जब मैं हर दिन
आत्मा के अगुवाई के अनुसार मैं चलूं, நான் ஆவிக்கேற்றபடி ஓட முடியும். तभी हम एक आत्मिक दौड़ में हम दौड़ सकेंगे। அல்லது மாம்சத்துக்குரியவனாய் மாறி போவேன். नहीं तो हम जो है एक शरीर का दौड़ने वाले बन जाएंगे। இதே கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் इसी गलातियों की पत्री में 5வது அதிகாரம் उसका 5वां अध्याय में 7வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். और उसका 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 7वां वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? நீங்கள் நன்றாய் ஓடினீர்களே. यहाँ पर पौलुस कहते हैं आप लोग जो है बहुत अच्छा दौड़ रहे थे। கலாத்திய திருச்சபை மக்களை, விசுவாசிகளை பார்த்து, ஊழியர்களை பார்த்து பவுல் கேட்கிறார். और यहाँ पे गलातियों के कलीसिया के विश्वासी और जो है वहाँ का सेवक सब लोगों से पौलुस ये पूछ रहा है, நீங்கள் இத்தனை காலம் நன்றாக ஓடினீர்களே, अभी तक आपने अपने दौड़ को बहुत अच्छा आपने दौड़ा, இன்றைக்கு சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் ஏன் போனீர்கள்? अभी आप सत्य की बातों पर क्यों आप आज्ञा नहीं मान रहे या सत्य पर क्यों कान नहीं लगा रहे हैं? இத்தனை நாள் நீங்கள் ஓடினது நல்லது, अभी तक आपने जो दौड़ा वो बहुत अच्छी बात है, ஆனால் நான் போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் இருக்கிறது அல்லவா? हमारी यात्रा बहुत लंबी दूरी की यात्रा है। சத்தியத்தின்படி நடந்தால் மட்டுமே அந்த எல்லை கோட்டை அடைய முடியுமே. और सत्य के द्वारा से चलेंगे, सत्य में होके चलेंगे, तभी हम हमारे दौड़ को पूरा कर पाएंगे। ஆனால் இத்தனை காலம் நன்றாக ஓடிவிட்டு अभी तक आपने अच्छा दौड़ा, இப்பொழுது நீங்கள் சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் வேறு பாதையிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களே. अभी आपने सत्य को इनकार कर दिया और दूसरा विचलित मार्ग में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। இந்த வார்த்தைகளை பவுல் எழுதுவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் உண்டு. यहाँ पर पौलुस इस कलीसिया को, इस शब्द को लिखने का एक खास मकसद है, कारण है। அந்த கலாத்திய திருச்சபைக்குள்ளே சில தவறான உபதேசங்கள் வந்தது. क्योंकि उस गलातियों के उस कलीसिया के अंदर गलत उपदेश चले आया। அது என்ன? वो क्या है? அங்கே யூதர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு சபையில் இருந்தார்கள். और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके गलातियों के कलीसिया में विश्वासी बने थे। புறஜாதிகள், அதாவது ரோமர்கள், கிரேக்கர்கள், இப்படிப்பட்ட புறஜாதிகளும் கலாத்திய சபைக்குள் இருந்தார்கள். और वे भी जो यूनानी है और जो है रोमी लोग हैं, वे भी प्रभु को ग्रहण करके उस कलीसिया का विश्वासी बने थे। இப்படி புறஜாதி மக்கள் சபைக்குள்ளாக வரும்போது जब अन्य जाति लोग कलीसिया में विश्वासी बन के जब आते हैं, யூதர்கள், அங்கிருந்த யூதர்கள் और वहाँ के जो स्थानीय यहूदी लोग, அவர்கள் தங்களுடைய நியாய பிரமாணத்திலே வைராக்கியம் உள்ளவர்கள். और यहूदी लोग जो है परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञाओं पर, परमेश्वर का दिया हुआ वचनों पर वो अटल रहते थे। அவர்களுடைய பாரம்பரியத்தை அவர்கள் வைராக்கியமாக பின்பற்றுகிறவர்கள். और जो यहूदियों का परंपरा है, वो सारे परंपराओं के अनुसार वो जीने वाले थे। குறிப்பாக அவர்கள் விருத்த சேதனத்தை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவார்கள். और वे जो है कथना को बहुत सख्त मना, उसका आज्ञा करके उसको माना करते थे। இப்படியாக புறஜாதி மக்கள் சபைக்குள் ரட்சிக்கப்பட்டு வரும்போது जब अन्य जाति लोग कलीसिया में यीशु मसीह को ग्रहण करके विश्वासी बन के जब आते हैं, இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டிய அவர்கள், और यीशु मसीह का शुभ संदेश को प्रचार करने वाले वे, நீங்கள் எங்களுடைய யூதருடைய பிரமாணங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர்களை நிர்பந்தித்தார்கள். और वे क्या कहते थे, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है, परंतु हमारा यहूदियों का परंपरा को आपको अपनाना है करके उनके अन्य जाति लोगों को ये लोग सिखाए। இதனாலே அங்கே யூதர்களுக்குள்ளும் புறஜாதி மக்களுக்குள்ளும் சபைக்குள் வந்த பிறகும் இசைந்த ஆத்துமாக்களா இல்லாதபடியினால் அவர்களுக்குள் பிரிவினை உண்டானது. और इसलिए वहां पर यहूदी और जो विश्वासी हैं और जो गैर मसीही, जो रोमी हैं और जो है यूनानी हैं, और उनमें से जो प्रभु को ग्रहण करके आया, उन दोनों के बीच में तनाव चलता था। அதை கேள்விப்பட்ட பவுல் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார். और उसको सुनने के बाद पौलुस उस कलीसिया के विश्वासियों को इस पत्री को लिखता है। அவர்களை கேள்வி கேட்கும் போதுதான் சொல்லுகிறார், और जब उनके
के बारे में सुनने के बाद उनसे सवाल करता है। இத்தனை நாட்கள் சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்பட்டு ஓடின நீங்கள் अभी पौलुस कहता है अभी तक आपने सत्य को जाना और सत्य का दौड़ को आपने दौड़ा, இன்றைக்கு மனித கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்பட்டு அவர்கள் பின்னால் ஓடுகிறீர்களே ஏன் என்று கேட்கிறார். अभी पौलुस पूछ रहा है अभी मनुष्य का बनाया हुआ परंपराओं पर क्यों चलते हो? முதலாவது ஆவியானவருடைய பலத்தை மறுதலித்து மாம்சப்படி ஓடும்போது நாம் பின்னிட்டு பார்த்து விடுவோம். जब पहले मैंने कहा था जब हम आत्मा के अगुवाई को छोड़ के हम अपने शरीर की ताकत पर हम दौड़ने का प्रयास करते हैं, उस समय हम पीछे की ओर दौड़ने लगते हैं। இரண்டாவது தேவ கற்பனைகளை விட்டுவிட்டு மனித கற்பனைகளை பின்பற்றும் போது நாம் பின்னிட்டு பார்த்து ஓடி விடுவோம். दूसरा परमेश्वर का दिया गया वचन जो सत्य है उसको छोड़ के मनुष्य का सिखाया हुआ परंपराओं को लेके हम चलेंगे, तब हम पीछे की ओर मुड़ने वाले या दौड़ने वाले बन जाएंगे। ஆக நம்முடைய ஊழியத்திலே நாம் வழி விலகாமல் பின்னிட்டு பார்க்காமல் ஓட வேண்டுமானால் यदि हमारे जीवन में हमारे मसीह दौड़ में सेवकाई की दौड़ में हमारा दौड़ विचलित न हो या पीछे न मुड़े, ஒவ்வொரு நாளும் ஆவியானவருடைய துணையோடு கூட ஓட வேண்டும். हर प्रतिदिन पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा के अगुवाई को लेके हमें दौड़ना है। ஒவ்வொரு நாளும் தேவ கற்பனைகளின்படி அவருடைய சத்தியத்தின்படி ஓட வேண்டும். हर प्रतिदिन परमेश्वर का जो वचन जो सत्य है, इस वचन के आधार का दौड़ हमें दौड़ना है। அப்பொழுது நம்முடைய ஊழியத்திலே நாம் வழி விலக மாட்டோம். तब हम जो है हमारे सेवकाई की दौड़ में, मसीह दौड़ में हम विचलित नहीं होंगे, அல்லது பின்னிட்டு பார்க்க மாட்டோம். या नहीं तो हम पीछे की ओर नहीं दौड़ने लगेंगे। இந்த நாளின் காலை வேளையிலே इस सुबह के वक्त में நம்முடைய ஊழியத்திலே हमारे सेवकाई में, நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஓட்டத்திலே हमारे मसीह दौड़ में எது நம்மை பின்னிட்டு இழுக்கிறது? अभी तो जरा सा जांचिएगा कौन सी बातें मुझे पीछे की ओर मोड़ने के लिए विवश करता है, எது நம்மை வழி விலகி போக வைக்கிறது? और कौन सी बात मुझे परमेश्वर के वचन से इस दौड़ में से विचलित करता है। உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் தெரியும். और वो आप जानते हैं, परमेश्वर जानता இந்த है। நாளிலே தேவன் உங்களை நீங்களே நிதானித்து பாருங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார். और परमेश्वर आज आपको कहता है तुम अपने आप को जांचो, परखो करके कहता है। அப்படி அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்காமல் நாம் போகும்போது यदि हम परमेश्वर का सिरीन आवाज पर काम नहीं लगाएं, நாமும் வழி விலகி போய்விடுவோம். हम लोग भी परमेश्वर के दौड़ में से हम विचलित हो जाएंगे அநேகரை இடற பண்ணி விடுவோம். और बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण भी बन जाएंगे। ஆக ஆவியானவருடைய துணையோடு ஓடுவோம். इसलिए पवित्र आत्मा के सहायता को लेके हम दौड़े சத்தியத்தின்படி கூட और ஓடுவோம். परमेश्वर के वचन आधार का दौड़ हम दौड़े। இந்த நாளிலே ஒன்று அல்லது இரண்டு நபர்களை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक या दो जन के दौड़ को मैं आपको दिखाऊंगा। இவர்கள் நன்றாக ஓட்டத்தை और ஆரம்பித்தவர்கள். वे अच्छा से अपना दौड़ को आरंभ किए அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியத்தை தான் செய்தார்கள். और वे दोनों परमेश्वर की सेवा को बहुत अच्छा से किए தேவ ஊழியனாகத்தான் और அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். वे परमेश्वर के दास होने के लिए बुलाए गए அந்த मनिதனுடைய பெயர் தேமா. और उनका नाम है, उस मनुष्य का नाम है तेमास। வாசிக்கலாம் 2 தீமோத்தேயு और उनके बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस की किताब 4வது அதிகாரம். और उसका 4वां अध्याय 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம். और दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय அங்கே 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். और 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 का 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकि को चला गया है, क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। அங்கே பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார். यहाँ पे पौलुस जो है वो उनका आत्मिक बेटा तीमुथियुस के लिए एक चिट्ठी लिख रहा है। இந்த வசனத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस वचन को अच्छा से समझना है तो பவுல் என்ன மனநிலைமையிலே எழுதுகிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். पौलुस किस प्रकार के मनसा में होके इस चिट्ठी को तीमुथियुस के लिए लिख रहा है, उसको हमें जानना है। பவுல் இப்போது தன்னுடைய கடைசி சிறையிருப்பிலே இருக்கிறார். पौलुस अभी बंदी गृह में है।
இதற்கு மேல் விடுதலை ஆவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. अभी आगे उनको बंदीगृह से छुटकारा मिलेगा कोई आशा नहीं है. அவளுக்கு நன்றாக தெரிந்து விட்டது. अभी पौलुस को बड़ी बात नहीं मालूम पड़ गया. நான் எப்படியும் கொல்லப்பட போகிறோம். अभी रोमी लोग हमको सिर को काट देंगे या हमको जो है मार डालेंगे. ரோம அரசாங்கம் என்னை விடுதலை செய்ய போகிறதில்லை. अभी रोमी जो सरकार हमको रिहा नहीं करने जा रहा है. ஆகவேதான் இதற்கு முந்தைய வசனங்களிலே சொல்லுகிறார், நான் இப்போதே பான பலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன். और इसलिए वो पहले ही कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए मैं अपने आप को बलिदान के रूप में उंडेलने के लिए मैं समर्पण कर நல்ல चुका हूं. போராட்டத்தை போராடி ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்று எழுதுகிறார். मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और अपने दौड़ को पूरा किया, विश्वास की रखवाली की करके उन्होंने कहा. ஆக கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நல்ல ஊழியம் செய்த தேவ மனிதனாகிய பவுல் और लगभग 20 वर्ष जो है परमेश्वर के लिए अच्छा कुश्ती जो सेवा को किया है, उस पौलुस ने यहाँ पर लिखा பல ஊழியங்களை ஸ்தாபித்து பல ஊழியர்களை எழுப்பி பல சபைகளை நிறுவின பவுல் और वहाँ पर बहुत से सुसमाचार को कहां से लेके कहां तक पहुंचाने वाला, कलीसिया को रोपण करने वाला, सेवकाई के लिए लोगों को खड़ा करने वाला पौलुस இப்பொழுது தனிமை சிறையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். और वो अकेले बंदीगृह में रखा गया है. நான் எப்போது மரித்து போகலாம் என்கிறதான நிலைமை. अभी उनको कभी भी जो है सजा मिल सकता है कि रोमी सरकार के द्वारा. கண்கள் இருள் அடைந்திருக்கிறது. अभी उनके आंखें धुंधला दिखाई पड़ रहा है. அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் என்று தெரியவில்லை. अभी आगे हमको क्या करना है उसको समझ में नहीं आ रहा है. பேசுவதற்கு யாரிடத்திலே பேசுவது என்று யோசிக்கிறார். अभी बात करने के लिए हम किससे बात करें, कोई भी सामने नहीं है. நான் ஸ்தாபித்த ஊழியத்தை யார் தொடர்ந்து நடத்த போகிறார் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். अभी जिस सेवकाई को मैंने शुरू किया, वो सेवकाई को आगे कौन संभालेगा, कौन आगे सेवकाई को ले जाएगा, अब उस प्रकार का विचार में है. அப்பொழுது விசுவாசத்திலே உத்தம குமாரனாகிய தீமோத்தேயுவுக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார். और उस समय में विश्वास में जो उत्तम जो है तीमोथियुस, जो इनका आत्मिक बेटा है, उनको चिट्ठी लिख रहा है. ஒரு வயதான தகப்பன் और एक बुजुर्ग पिता தான் மரிக்கும் தருவாயிலே वो अपने मृत्यु के समय काल में தன்னுடைய மகனுக்கு और अपने बेटा को தன் இருதயத்தை எல்லாம் ஊற்றி ஒரு கடிதத்தை எழுதுவாரானால் எப்படி எழுதுவார்? और वो अपना पूरा दिल को प्रकट करने लायक एक चिट्ठी लिखे, वो किस प्रकार लिखेगा, उसी प्रकार इसने लिखा. அதே மன நிலைமையில் இருந்துதான் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார். और उसी प्रकार के मनसा के साथ इस चिट्ठी को पौलुस ने लिखा. இனிமேல் நீங்கள் 2 தீமோத்தேயுவை வாசிக்கும் போது यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप दूसरा तीमुथियुस की किताब को पढ़ेंगे, பவுலுடைய சூழ்நிலையை மனதில் வைத்துக் கொண்டு வாசியுங்கள். और पौलुस का उस वातावरण को आप थोड़ा कल्पना करके आप इस वचन को पढ़िए. அப்பொழுது பவுல் எவ்வளவு வேதனையோடு கூட அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார் என்பது நமக்கு தெரியும். और पौलुस कितना वेदना के साथ इस चिट्ठी को लिख रहा है करके आपको समझ में आएगा. அப்படி எழுதும் போதுதான் जब वो इस प्रकार जब उस मनसा के साथ वो चिट्ठी लिखा, வாசித்த இந்த 10வது வசனத்திலே और जो वचन जो 10वां वचन को हमने पढ़ा, தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து और जो तेमास जो है इस संसार के ऊपर मोहित हो गया என்னை விட்டு பிரிந்து और वो मुझसे अलग हो गया தெசலோனிக்கே பட்டணத்திற்கு போய்விட்டான். और तेसलोनिकियों में वो चला गया. ஆக பவுல் இங்கே தேமா என்கிற ஒரு மனிதனை காண்பிக்கிறார். यहाँ पर पौलुस जो है तेमास करके एक व्यक्ति है, उनके बारे में बतला रहा है. தீமோத்தேயுவிடத்திலே சொல்லுகிறார், और तीमुथियुस से कह रहा है, தீமோத்தேயுவே, हे तीमुथियु, நான் கடைசி சிறையிருப்பில் இருக்கிறேன். मैं अभी इस बंदीगृह में हूँ और अंतिम क्षण का दौड़ रहा हूँ. நான் எப்போது வேண்டுமானாலும் கொல்லப்படலாம். मुझे लोग कभी भी सजा दे सकते हैं, मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ. அநேகர் என்னை விட்டு போய்விட்டார்கள். और बहुत लोग मुझे छोड़ दिए हैं. ரோம அதிபதிகளில் சிலர் கூட எனக்கு துரோகம் செய்து और விட்டார்கள். रोमियों के सिपाहियों में से बहुतों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया. இந்த உலக பிரகாரமான மனிதர்கள் என்னை விட்டு போனது எனக்கு வருத்தம் அல்ல. जो इस संसार में लोग मुझसे अलग हुए हैं, उसके बारे में मेरे अंदर जरा सा भी दुख नहीं है. ஆனால் इतने நாள் நம்மோடு ஒருவன் இருந்தான் அல்லவா, தேமா. परंतु इतने साल जो हमारे साथ जो सेवा करने वाला हमारा भाई तेमास,
இந்த கடைசி நாளிலே என்னோடு கூட இருக்க வேண்டியவன். और इन अंतिम दौड़ में अंतिम समय में मेरे साथ उसको रहना चाहिए था. இந்த கடைசி நாளிலே என்னோடு இருந்து என் ஊழியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டியவன். और मेरे साथ अंतिम दौड़ में अंतिम समय में रह के मेरी सेवकाई को उसको अपने ऊपर ले लेना चाहिए था. என்னோடு இருந்து எனக்கு ஆதரவா இருந்து எனக்கு உதவி செய்திருக்க வேண்டியவன். और मेरे साथ रह करके मेरे सेवकाई में मदद करके मेरे संग रहना चाहिए था. என்னோடு இருந்து எனக்கு சப்போர்ட்டாக என்னை தாங்கி இருக்க வேண்டியவன். और मेरे साथ रह के मेरे सेवकाई को संभालते हुए मुझे भी मदद करते हुए आगे ले जाना चाहिए था. இன்றைக்கு பிரிந்து போய்விட்டான் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். यहाँ पे पौलुस बहुत दुख के साथ कहता है देमास मुझसे अलग हो गया. ஏன் பிரிந்து போனான்? क्यों वो अलग ஏன் हुआ? பிரிந்து போனான்? எது அவனை பிரித்தது? और देमास अलग होने का कारण क्या है? பவுல் ஒருவேளை அவன் போய்விட்டான் என்று சொல்லி இருந்தால் நாம் அதை வாசித்து விட்டு அப்படியே விட்டு விடலாம். बड़ा ध्यान दीजिएगा, पौलुस यदि कहा होता कि देमास चला गया वो ज्यादा मान्य नहीं रखता है, परंतु देमास मुझसे अलग हो गया करके कहता है. இந்த உலகத்தின் மேல் ஆசை வைத்து போய்விட்டான் என்று பவுல் அங்கே எழுதுகிறார். और इस संसार पर मोहित होकर के वो चला गया करके लिखता है. ஆக இத்தனை நாட்கள் பவுலோடு கூட ஊழியத்திலே ஓடி வந்த தேமா பிரிந்து போனதன் காரணம் என்ன? और यहाँ पे इतने साल जो है पौलुस के साथ दौड़ने वाला देमास उसको संसार को लेकर संसार की ओर दौड़ने का कारण विवश कौन सी बात विवश किया? தேமாவிற்கு இந்த உலகத்தின் மேல் ஆசை வந்து விட்டது. देमास को इस संसार के ऊपर अभी जो है मोह या प्रेम ज्यादा हो गया. தேமாவுடைய ஊழியத்தை நாம் அதிகமாக வேதத்திலே பார்க்க முடியாது. ये देमास का जो सेवकाई के बारे में बाइबल में ज्यादा नहीं पढ़ सकते. தேமாவை குறித்த அதிகமான குறிப்புகள் இல்லை. और देमास के बारे में ज्यादा बाइबल में वर्णन नहीं है. ஆனால் என்னுடைய அனுமானப்படி और मेरे जो है अंदाज के अनुसार இந்த தேமா பவுலோடு குறைந்தது ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஊழியம் செய்திருக்க थोड़ा வேண்டும். ध्यान दीजिएगा, ये देमास जो है लगभग 15 साल पौलुस के साथ मिलके सेवा काम में लगा हुआ रहा होगा. ஏனென்றால் இந்த தேமா தெசலோனிக்கே பட்டணத்தை சேர்ந்தவன் என்று அறிகிறோம். और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये देमास जो है वो थेसलोनिकियों का रहने वाला निवासी है. இந்த கடைசி சிறையிருப்பிற்கும் और ये अंतिम जो है बंदीगृह का समय है. பவுல் முதல் தெசலோனிக்கே பட்டணத்திற்கும் போன காலத்திற்கும் இடைவெளி குறைந்தது ஒரு 12 முதல் 15 ஆண்டுகள் இருக்கும். और जब पौलुस ने थेसलोनिकियों में जो सेवकाई शुरू किया उसको और ये अंतिम समय में जो अभी जो लिख रहे हैं इन दोनों का समय काल में देखेंगे 12 से 15 वर्ष है. பவுலுடைய தெசலோனிக்கே பட்டணத்து ஊழியத்தை நாம் அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். और पौलुस का थेसलोनिकियों के उस शहर का जो सेवकाई है उसके बारे में प्रेरितों के काम की किताब 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं. பவுல் அங்கே போயிருக்கும்போது जब वो थेसलोनिकियों में गया था அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். बहुत से लोग उद्धार पाए. அதிலே ஒரு மனிதனாக இந்த தேமா இருந்திருக்கலாம் என்று நான் யோசிக்கிறேன். मैं इस प्रकार सोच रहा हूँ कि पौलुस ने जब 12-15 साल पहले जो इस चिट्ठी को लिखने के उस समय में 15 साल पहले थेसलोनिकियों में जाके सुसमाचार सुनाया, उस समय में प्रभु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति होगा ये देमास. அது மட்டுமல்ல, न केवल इतना है, அதற்கு பிற்பாடு பவுல் பல பட்டணங்களுக்கு போகிறார். और उसके बाद पौलुस कई शहरों में जाता है. அப்போஸ்தலர் 21க்கு பிறகு பவுல் கைது செய்யப்படுகிறார். और प्रेरितों के काम में 21 के बाद ही पौलुस को बंदीगृह में ले जाते हैं. அங்கும் இங்கும் விசாரணை என்று அலைக்கழிக்கப்படுகிறார். और वहाँ पर पौलुस को पूछताछ के लिए इधर उधर इस शहर में उस शहर में करके लोग ले जा रहे हैं. ரோமாபுரிக்கு கொண்டு வந்து வீட்டு சிறையிலே 2 ஆண்டுகள் வைக்கப்படுகிறார். और वहाँ पर रोमी शहर में ला करके उनको 2 साल घर में जो है बंदी बना करके रखा गया था. அந்த வீட்டு சிறையிலே வைக்கப்பட்டிருந்த போது और उस घर में वो बंदी बना के रखा गया था. பவுல் 4 கடிதங்களை எழுதினார். और उस घर पर वो रख के 4 चिट्ठियों को लिखा. எபேசியர், பிலிப்பியர், கொலோசையர், பிலமோன். और जो है एफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री, कुलुसियों की पत्री को उसने लिखा. இந்த 4 நிருபங்களும் பவுலுடைய முதலாவது வீட்டு சிறையிருப்பிலே எழுதப்பட்ட நிருபங்கள். चारों जो है पत्रियों पत्री को पौलुस ने घर का बंदीगृह जो घर का रखा गया था उस समय में उसने लिखा था. அந்த வீட்டு சிறையிருப்பிலிருந்து கொலோசையருக்கு ஒரு நிருபத்தை எழுதும்போது जब वो कोलोसियों के
कलीसिया को जब वो लिख रहा था, கொலோசையருக்கு எழுதின நிருபம் 4வது அதிகாரம் और कोलोसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 14வது வசனத்தை வாசியுங்கள். और उसका 4था वचन को पढ़िएगा। சிறையிலிருந்து பவுல் எழுதுற கடிதம் 4:14. और वो बंदी गृह में से वो पौलुस जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसको पढ़िएगा। कोलोसियों की पत्री 4:14। फिर ये मैं लूंगा हाँ आपके मांस का तुम्हें नमस्कार। हाँ लौकिक भाई को खास कलीसिया को नमस्कार करता हूं। பிரியமா அந்த கடிதத்தை நிறைவு செய்யும் போது பவுல் எழுதுகிறார், और जब वो कोलोसियों की कलीसिया का जो चिट्ठी में अंत में वो लिख रहा है, வைத்தியனாகிய லூக்கா என்னோடு இருக்கிறான், और बैत जो है मेरा प्रिय बैत जो है लूका वो मेरे साथ है, தேமா என்னோடு இருக்கிறான், और वो देमास भी मेरे साथ है, அவர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள். और वो तुम्हें कामनाएं शुभकामनाएं देता है। ஆக இந்த பவுலுடைய முதலாவது சிறையிருப்பிலே और ये पौलुस का बंदी गृह का उस समय में, தேமாவும் பவுலோடு இருக்கிறார். और ये देमास भी पौलुस के साथ है। ஆக இத்தனை நாட்கள் இந்த தேமா பவுலோடு கூட உண்மையாக ஊழியத்திலே ஓடி வந்தவன். अभी इतने साल पौलुस के साथ मिलके देमास ने दुख उठाया और सेवकाई को किया, பவுலுடைய எல்லா பாடுகளிலும் உடன் இருந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்தவன். और पौलुस के साथ सारे दुख की घड़ी में, सारे संकट की घड़ी में साथ रहने वाला देमास था, உண்மையாக ஊழியம் செய்தவன், और सच्चा सेवक भी था, தேவனுக்காக வைராக்கியம் பாராட்டினவன். और परमेश्वर के लिए बहुत दूर दिखाने वाला था। அதே சிறையிருப்பிலிருந்து பவுல் பிலமோனுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார். और उसी बंदी गृह में फिलेमोन के लिए पौलुस एक चिट्ठी लिखता है। அந்த பிலமோனுக்கு எழுதின நிருபம் ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் और இருக்கிறது. फिलेमोन के लिए जो चिट्ठी लिखता है एक ही अध्याय है। அதிலே 24ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். और ये भी है ना इब्रानियों के पत्री के पहले जो फिलिपियों का है ना ये फिलेमोन की पत्री है, उसमें 24वां एक ही अध्याय है 24वां वचन में लिखता है। और யார் அங்கே இருக்கிறார் பாருங்க. कौन कौन है पढ़िएगा, पढ़िए। और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी है इनका तुझे नमस्कार। அங்கே யார் கூட இருப்பது? अभी यहाँ पर कौन साथ में है? மார்க் இருக்கிறான், और मरकुस है, அரிஸ்தர்க்கு, अरिस्तर्ख है, தேமா, देमास है, लूका। लूका। அங்கேயும் தேமா और இருக்கிறார். यहाँ पर भी हम देखते हैं देमास है। இங்கே பவுல் சொல்லும்போது यहाँ पर पौलुस कहता है, என்னுடைய உடன் வேலையாளாகிய தேமா என்று और यहाँ சொல்கிறார். पर मेरे सहकर्मी करके पौलुस कहता है, ஆக सहकर्मी। ஆக இந்த தேமா ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல, इसलिए देमास जो है साधारण मनुष्य नहीं है। பவுலோடு கூட உடன் ஊழியனாக பல ஆண்டுகள் இருந்து அனுபவம் வாய்ந்தவன். और ये पौलुस के साथ बहुत साल रह के बहुत अनुभवी एक सेवक है, தேவனுக்காக இத்தனை ஆண்டு காலம் வைராக்கியமாய் ஓடினவன். और परमेश्वर के लिए बहुत दूर दिखाते हुए दौड़ने वाला, அப்படிப்பட்ட தேமாவுக்குள்ளும் और वैसा रहने वाला देमास के अंदर, இந்த उलग ஆசை வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. और ये संसार का अभिलाषा उसके अंदर भी आने का संभावना है। நாம் ஒருவேளை யோசிக்கலாம், हम लोग कभी कभी हम सोच सकते हैं, நான் பல ஆண்டுகள் மிஷனரியாக இருக்கிறேன், मैं तो बहुत सालों से मिशनरी எனக்கு हूँ, பல அனுபவங்கள் உண்டு, मेरे पास बहुत का एक अनुभव என்னை है, சத்துருவால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, और मुझे शैतान जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता என்னுடைய है, பலத்தினாலே நான் ஓடி விடுவேன், और मैं अपने बल बुद्धि ताकत से मैं उसको पार कर दूंगा, என்னுடைய அனுபவத்தினாலே நான் சாதித்து விடுவேன். मैं अपने कितना अनुभव मेरे पास है, सारे अनुभव के द्वारा मैं बहुत कुछ करूंगा, என்னுடைய அனுபவம் என்னை இலக்கை நோக்கி கொண்டு போய்விடும் और मेरा अनुभव जो है वो मेरे लक्ष्य की ओर मुझे ले जाएगा। என்கிறதான யோசனை நமக்கும் வர வாய்ப்புண்டு. कभी कभी हमारे अंदर भी इस प्रकार का विचार आने का संभावना है। அப்படிப்பட்ட மனநிலைமையில் நாம் இருப்போமானால் यदि उस प्रकार का मनसा में हम आप और हम पाए जाएंगे तो வேதம் தேமாவை நமக்கு எச்சரிப்பாக எழுதி வைத்திருக்கிறது. यहाँ पर परमेश्वर का वचन देमास को आपके लिए और मेरे लिए चेतावनी के रूप में लिख के दिया है। எத்தனை ஆண்டு கால ஊழியத்தில் இருந்த ஊழியனையும் இந்த உலகம் இழுத்துவிடும். जितने साल का अनुभवी सेवक क्यों न हो, संसार का आकर्षण जो है उन्हें भी विचलित कर देगा। ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता நீங்கள் है, ஆவிக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள்.
ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து इसलिए கொள்ளுங்கள். वचन कहता है तुम अपने आत्मा के अनुसार चलाए चलो। ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியானவர் துணையோடு கூடத்தான் நான் ஓட வேண்டும். आप और हम जो है हमारी दौड़ में परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर के आत्मा के ताकत के द्वारा से ही चलना है। என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஓட்டத்திலே மாம்சம் குறுக்கே வர முடியாது. और हमारे आत्मिक दौड़ में हमारा शरीर बीच में नहीं आना है। மாம்சம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்கு விரோதமாக போராடுகிறது. हमारा शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध में युद्ध करते रहता है। இந்த உலகத்தின் மேல் என் கண்களை அது கொண்டு போய்விடும். और जो है संसार के ओर मुझे अपना ध्यान को भटका देगा। உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறியீர்களா என்று யாக்கோபு எழுதுகிறார். याकूब ने कहा, याकूब की पत्री में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो है संसार पर संसार का सदस्य या संसार का मित्र रहना परमेश्वर के लिए जो है विरोध की काम है करके लिखा है। உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் என்று யோவான் அப்போஸ்தலன் எழுதுகிறார். पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, ना तो संसार और न संसार की चीजों से प्रेम न रखो। यदि संसार में तुम प्रेम रखते हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है करके लिखा है। ஏன் இவைகள் எல்லாம் நமக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது? क्यों इन सारी बातें हमारे लिए लिख के दिया गया है? உலகத்திற்கோ இந்த சபைக்கோ தேவ பிள்ளைக்கோ வெளியில் இருந்து வருகிற போராட்டம் ஒருபோதும் சபையையோ தேவ பிள்ளைகளையோ அழித்து விட முடியாது. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो बाहर से जो विरोध आता है वो हमारी दौड़ को उतना जो है प्रभावित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। வெளியில் இருந்து வருகிற போராட்டங்கள், உபத்திரவங்கள், பிரச்சனைகள் அது சபையை வளரச் செய்யும். और बाहर से जो हमारे लिए विरोध आता है, उपद्रव आता है, वो कलीसिया को बढ़ाता है, ना कलीसिया को पीछे की ओर मोड़ने के लिए विवश करता है। ஆனால் சபைக்கு உள்ளிருந்து எழும்புகிற குழப்பங்கள், உலகம் அது சபையை அழித்து விடும். परंतु संसार कलीसिया में जो संसार रहेगा वो ही संसार की बातें कलीसिया को बिगाड़ देगा, या कलीसिया का दौड़ को विचलित कर देगा, या पीछे की ओर मोड़ने का विवश कर देगा। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் நாம் உலகத்திற்கு, உலகத்தின் பார்வைக்கு இடம் கொடுக்கும்போது தேவ கற்பனைகளை விட்டு நாம் உலகத்திற்கு நேராக வழி விலகி போய் விடுவோம். जब हम लोग जो है इस दौड़ में संसार पर ज्यादा ध्यान देंगे, संसार को हम अपने आत्मिक जीवन में मिलाएंगे, तो हमारा दौड़ भी विचलित भी हो जाएगा, या जो है विपरीत भी दौड़ने लगेंगे। அதை உணர்த்தும்படியாகத்தான் தேமாவை குறித்து அங்கே பவுல் எழுதி வைத்திருக்கிறார். इसलिए यहाँ पर चितौनी के रूप में देमास का जीवन यहाँ पर लिखा गया है। சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் முதலாவது தேமாவுக்குள் ஏற்பட்டது இந்த உலக ஆசை. और पहला जो है देमास के अंदर जो आया है वो संसार का प्रेम उसके अंदर आया। என்ன ஊழியம் செஞ்சு என்னத்தை பார்த்தோம்? अभी इतने साल सेवा करते करते हम क्या मिला हमको? இத்தனை வருஷமா பாடுபட்டு என்னத்தை அனுபவிச்சோம்? इतने दिन मसीह के लिए दुख उठाते उठाते हमको क्या मिला? உலகத்துல இருக்கிற மத்த மனுஷனை பார்க்கும்போது அவன மாதிரியே நான் ஒரு வேலைக்கு போயிருக்கலாம். और संसार में जो लोगों को देखता हूँ वो नौकरी करता है, क्या आपको भी इस प्रकार नौकरी में जाना चाहिए था? என் கூட படிச்சவன் எல்லாம் காரு வீடுன்னு வச்சு நல்ல நிலைமையில இருக்கிறான். और जो मेरे साथ पढ़ाई किया और मेरे साथ रहा, और वे उनके पास देखो अच्छा अच्छा मकान है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। ஊழியம் ஊழியம்னு வந்து எனக்கு என்ன நடந்துச்சு? अभी सेवकाई में आके हमने क्या प्राप्त किया? कुछ नहीं। इतने ஆண்டுகள் பவுலோடு ஓடியாச்சு. अभी इतने साल पौलुस के साथ तो हम दौड़ चुके हैं। இப்பொழுது சிறைச்சாலைக்கு வந்தாச்சு. अभी बंदीगृह में भी हम आ गए हैं। முதல் சிறையிருப்பிலையும் பவுல் கூட இருந்தாச்சு. और पहले बार बंदीगृह में पौलुस के साथ हम भी दुख भी उठा चुके हैं। அவருடைய எல்லா பாடுகள்லயும் நான் உடன் இருந்துட்டேன். और पौलुस के सारे कठिनाई में, परेशानी में हम भी साथ दिए। இப்பொழுது கடைசி சிறையிருப்புல பவுல் கூட இருந்தனா என்னையும் கொன்றுவாங்க. अभी आखिरी जो है बंदीगृह का आखिरी क्षण में भी हम पौलुस के साथ रहेंगे। पौलुस को जैसे सिर कट जाएगा, हमारे भी सिर को काट देगा। நானும் போய் உலகத்து மனிதர்களைப் போல சந்தோஷமாக வாழ்ந்து விட்டு போகிறேன் என்று சொல்லி தேமா அங்கே பிரிந்து போனார். और वहां पर देमा मसीह के लिए अपना जीवन को देना नहीं चाहता देमास, परंतु अभी हम मसीह के लिए रहेंगे, आगे काटे जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा जाए, संसार में जाए, कमाए खाए, इतने साल तो दुख उठाए, अभी थोड़ा अच्छा से रहेंगे करके उसने सोचा। ஆக கிறிஸ்தவ ஓட்டத்திலே
इसलिए मसीह दौड़ में, வழி விலகாமல் ஓடுவோம், इसलिए हम लोग जो है मसीह दौड़ में कभी भी विचलित ना हो, பின்னிட்டு பார்க்காமல் ஓடுவோம். और इसलिए पीछे की ओर भी ना मुड़े। தேமாவும் கடைசி வரை பவுலோடு உடன் இருந்திருந்தால் எத்தனை மகிமையாய் இருந்திருக்கும். मान लीजिए आखिरी क्षण तक देमास यदि पौलुस के साथ रहा होता, कितना महिमामय बात हुई होती। हालेलुया। தீமோத்தேயுவை போலவே தேமாவும் பல ஊழியங்களை செய்திருப்பானே. तीमुथियुस के जैसे देमास भी बड़े-बड़े सेवकाई करके और परमेश्वर का नाम उनके द्वारा ऊंचा हुआ होता। இத்தனை ஆண்டுகள் ஓடின ஓட்டம் எல்லாம் வீணாய் போயிற்று. अब इतने साल का दुख उठाना, ये सब पानी फेंका गया और सब बेकार चला गया देमास का। நீங்களும் நானும் இம்மட்டும் ஓடி வந்தது நல்லது. अभी तक आप और हम जो मसीह यीशु के साथ जो दौड़ के आए, बहुत अच्छा है। இனிமேலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாம்சத்திற்கு இடம் கொடுத்து வழி விலகாமல் நம்மை காத்துக்கொள்வோம். आगे भी हम अपने शरीर के लिए हमारे सेवकाई में मौका ना दे, हमारे सेवकाई की दौड़ में मौका ना दे, ताकि आप विचलित ना हो, आप ना विपरीत में दौड़ने वाले बने। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஆவியானவருடைய துணையோடு தேவ கற்பனைகளின்படி நடப்போம். इसलिए हर प्रतिदिन आत्मा के अगुवाई के द्वारा और सत्य को पालन करते हुए हम जीवन जिए। இதே போன்ற இன்னொரு மனிதனையும் வேதம் காண்பிக்கிறது. और इसी प्रकार और एक मनुष्य को भी बाइबल बतलाता है, அவனுடைய பெயர் மார்க்கு. और उनका नाम मरकुस। அந்த மார்க்கை குறித்து நாம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 13ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். और उस मरकुस के बारे में प्रेरितों के काम की किताब उसका 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன், சில வசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். और मैं संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा, कुछ वचनों को बताऊंगा, कृपया आप नोट कर लीजिएगा, எல்லாவற்றையும் வாசிக்க நமக்கு நேரம் இல்லை. क्योंकि सारे वचनों को बताने के लिए हमारे पास टाइम पर्याप्त नहीं है। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 12ஆம் அதிகாரத்திலே और प्रेरितों के काम की किताब 12वां अध्याय में, பேதுரு அங்கே கைது செய்து சிறைச்சாலையில और வைக்கப்பட்டார். वहां पर पतरस को लोगों ने बंदीगृह में कैद कर दिया, बंदीगृह में डाल दिया। அப்பொழுது அந்த பட்டணத்தில் இருந்த ஒரு ஸ்திரீயினுடைய வீட்டிலே சிலர் ஜெபம் பண்ணி और கொண்டிருக்கிறார்கள். वहां पर उस शहर में एक महिला के घर पर लोग मिलके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। அந்த குடும்பத்திலே ஒரு ஆண் மகன் இருந்தான், அவனுடைய பெயர் தான் மார்க்கு. और उस घर में एक जवान लड़का था, उस जवान लड़का का नाम ही मरकुस है। அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். और प्रेरितों के काम की किताब 12वां अध्याय 12 वचन। அவனுடைய பெயர் அங்கே யோவான் என்னும் மறு பெயர் கொண்ட மார்க்கு என்று और கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर उनका नाम है यूहन्ना और मरकुस का गाना, उनका नाम है यूहन्ना मरकुस, जॉन मार्क। மார்க்குடைய மறு பெயர் என்ன? और जो है मरकुस का दूसरा नाम क्या है? दूसरा क्या नाम क्या है? यूहन्ना। அது மறந்து और விடக்கூடாது. उसको आप बोलना नहीं। அப்பொழுது பேதுரு விடுதலை செய்யப்படுகிறார் அங்கே. और वहां पर उस 12 अध्याय में देखेंगे कलीसिया लव लगा के प्रार्थना किया और बंदीगृह में से, और जो है वहां पर पतरस को छुट्टी मिल जा रहा है। அந்த சூழ்நிலையிலே பர்னபாவும் பவுலும் எருசலேமுக்கு வருகிறார்கள். और वहां पर उस समय में पौलुस और बरनबास दोनों यरूशलेम के कलीसिया के पास आ रहा है। இந்த மார்க்குவும் பர்னபாவுக்கு இனத்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और ये मरकुस जो है बरनबास का खास में ना रिश्तेदार है। அதன் மூலமாக பவுலோடு கூட மார்க்குவுக்கு ஒரு அறிமுகம் உண்டாகிறது. और वहां पर पौलुस का मुलाकात मरकुस के साथ बरनबास के द्वारा हो जा रहा है। மார்க்குவும் தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற ஒரு நல்ல வாலிபன். और मरकुस जो है वो भी परमेश्वर का भय रखने वाला एक अच्छा जवान है। இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்திருந்தவன். और प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश के लिए अपने आप को समर्पण किया हुआ एक जवान है। அவருடைய ஊழியத்திற்காக தன்னை ஒப்புக் கொடுத்திருந்தவன். और उनकी सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण किया था। இப்பொழுது பர்னபாவும் பவுலும் எருசலேமுக்கு அங்கே வந்து மார்க்குவை சந்திக்கிறார்கள். और वहां पर बरनबास और पौलुस दोनों मरकुस से मुलाकात करते हैं। மார்க்கு சொல்லுகிறான், मरकुस ने कहा, நானும் உங்க கூடவே ஊழியத்துக்கு வர்றேன். मैं भी आपके साथ सेवकाई में आऊंगा। நானும் ஊழியத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறேன். मैं भी सेवकाई के लिए समर्पण किया हूँ। பர்னபாவும் பவுலிடத்திலே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுகிறார். और बरनबास क्या कहता है? पौलुस से बोलता है कि इसको भी हम सेवकाई में लेते चले। இவன் ரொம்ப நல்ல பையன். और ये जवान है, बहुत धूम दिखाने वाला है। வயசுல இருந்து தேவனுக்காக வளர்ந்து அறிஞ்சு வளர்ந்திருக்கிறான். और ये छोटे उम्र में से ही सुसमाचार को
सुना है यीशु मसीह के प्रति इसके अंदर प्रेम है இவனுக்கு ஊழியத்துல வாஞ்சை இருக்குது, और ये सेवकाई के प्रति इसके अंदर दून है நம்மோடு கூட்டிக் கொண்டு போகலாம் என்று சொல்லுகிறார். और हम लोग अपने साथ इसको भी लेके जाएं பவுலும் அதற்கு சம்மதிக்க और पौलुस भी बोलता है कि ठीक है इसको लेते जाएंगे அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனம் और प्रेरितों के काम की किताब 12वां अध्याय 25वां वचन அங்கே சொல்லப்படுகிறது, वहां पर लिखा है பர்னபாவும் பவுலும் அந்தியோகியாவிற்கு திரும்பி வருகிறார்கள். और वहां पर बरनबा और शाऊल दोनों अंताकिया को आ रहे அங்கே हैं என்ன செய்கிறார்கள்? மார்க்குவையும் உடன் கூட்டி வருகிறார்கள். और वे मरकुस को भी वहां साथ लेके आ रहे हैं மார்க்கு என்னும் மறு பெயர் கொண்ட யோவானை கூட்டிக் கொண்டு எருசலேமை விட்டு திரும்பி அந்தியோகியாவிற்கு வந்தார்கள். और वहां पर पौलुस और जो है बरनबा दोनों मरकुस जो यूहन्ना कहलाता है उसको भी लेकर के यरूशलेम से अंताकिया पहुंच रहे हैं ஆக மார்க்குவினுடைய ஊழிய ஓட்டம் ஆரம்பமாகிவிட்டது. अभी मरकुस का सेवकाई का दौड़ यहाँ पर शुरू हो रहा है இப்பொழுது அந்தியோகியா பட்டணத்தில் வந்து பவுலும் மற்ற சகோதரர்களும் அங்கே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். और अंताकिया में पौलुस और अन्य जो प्रभु के दास हैं जो लोग मिलके सेवा कर रहे हैं சில காலங்கள் சென்ற பின்பு कुछ दिन बीतने के बाद அங்கே இருந்து பவுலையும் பர்னபாவையும் மிஷனரி பணிக்காக பிரித்து அனுப்புங்கள் என்று சொல்லி தேவ ஆவியானவர் அந்தியோகியா சபை மக்களிடத்திலே பேசுகிறார். और वहां पे अंताकिया के कलीसिया के विश्वासियों से पवित्र आत्मा यूं कहता है क्या है कि पौलुस और बरनबास दोनों को जिस सेवकाई के लिए मैंने इनको बुलाया इनको अलग कर दो அப்பொழுது மார்க் சொல்லுகிறான், நான் உங்களோடு கூட வருகிறேன். और उस समय में भी मरकुस कहता है मैं भी आपके संग चलूंगा அப்பொழுது பவுலும் பர்னபாவும் மார்க்குவை அழைத்துக் கொண்டு और उस समय में पौलुस और बरनबास दोनों मरकुस को लेके தங்களுடைய முதலாவது மிஷனரி பிரயாணத்தை தொடங்குகிறார்கள். अपना पहला मिशनरी यात्रा को वहां से आरंभ कर रहे हैं அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். और उसको हम जो है प्रेरितों के काम की किताब 13 अध्याय 5वां वचन में हम पढ़ते हैं குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். उसको भी आप नोट कर लें அங்கே யோவானும் அவர்களுக்கு உதவிக்காரனாய் இருந்தான் என்று और போட்டிருக்கிறார். वहां पर यूहन्ना उन्हें उनको साथ रह के उनको मददगार के रूप में रहा करके लिखा है அங்கே யோவான் என்று போட்டிருக்கிறது, ஆனால் அதை நீங்கள் மார்க் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். और वहां पर यूहन्ना लिखा है परंतु आप उसको यूहन्ना मरकुस जो दूसरा नाम है उसको मरकुस समझना है ஆக மார்க் எருசலேமிலிருந்து அந்தியோகியாவிற்கு வந்தான். थोड़ा ध्यान दीजिएगा मरकुस अभी यरूशलेम से अंताकिया आ गया அந்தியோகியாவிலே சில காலம் ஊழியம் செய்தான். अंताकिया में कुछ दिन रह के पौलुस और बरनबास के साथ सेवा किया அப்பொழுது பவுலும் பர்னபாவும் மிஷனரி பிரயாணம் தொடங்குகிறார்கள். और पौलुस और बरनबास वहां से मिशनरी यात्रा आरंभ कर रहे हैं அவர்களோடு ஒரு மிஷனரியாக புறப்படுகிறார். और वहां पर उन लोगों के साथ एक मिशनरी यात्रा में वो निकल रहा है பல பட்டணங்களுக்கு போகிறார்கள். और बहुत से शहर से लेके एक शहर से लेके दूसरे शहर में भी जा रहे சில हैं ரோம அதிபதிகள் கூட ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். और वहां पर कुछ रोमी सिपाही लोग भी प्रभु को जाना है ஊழியம் நன்றாக போய் और கொண்டிருக்கிறது. वहां पर सेवकाई बढ़ रहा है மார்க்குவுக்கும் சில பொறுப்புகள் और கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मरकुस के हाथ में भी कुछ जिम्मेवारियां दी गई है ஒருவேளை பர்னபாவும் பவுலும் பெரியவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணி और இருப்பார்கள். पौलुस और बरनबास बड़े बड़े लोगों को प्रचार किए होंगे மார்க் ஒருவேளை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சண்டே கிளாஸ் எடுத்திருப்பார். और मरकुस जो है छोटे बच्चों को इकट्ठा करके संडे क्लास लेने वाला उस सेवकाई को किया होगा ஒருவேளை வாலிப பிள்ளைகளுக்கு யூத் மீட்டிங் எடுத்திருப்பார். और शायद वो मरकुस जो है जवानों का मीटिंग चलाया होगा பைபிள்ல எங்க போட்டிருக்குன்னு கேட்காதீங்க, என்னுடைய கற்பனை. बाइबल में भैया कहीं सब कहाँ लिखा है करके मत पूछिएगा संडे क्लास क्या लिखा है यूथ मीटिंग ये तो मेरा जो है मैं इसको कल्पना करता हूँ உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன். मैं आपको जानकारी के लिए या आपको जो है समझने लायक मैं बताना चाहता हूँ அவர்கள் என்னவெல்லாம் செய்தார்கள் அப்படின்னு பைபிள்ல எழுதுனா பைபிள் இவ்வளவு பெருசா இருக்கும். मान लीजिए उन लोगों ने क्या क्या किया करके हर बात को लिखा होता बाइबल इतना बड़ा रहता ஆக அவர்களுடைய ஊழியத்திலே எப்படி அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது. और वे सेवकाई में कैसे कैसे काम किए उसको मालूम नहीं है ஆனால் மார்க் பர்னபாவுக்கும் பவுலுக்கும் உதவிக்காரனாக இருந்து உண்மையாக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். परंतु मरकुस जो है पौलुस और बरनबास दोनों के लिए सहकर्मी के रूप में वो भी सहयोग करने वाले के रूप में
सहयोग करता था சில सेवकाई நாட்கள் கடந்தது, कुछ दिन बीता சில பட்டணங்கள் கடந்தது. और कुछ शहर में वो लोग जाके सेवा किए இப்பொழுது மார்க்குவுக்குள் சில சோர்வு ஏற்பட்டது. अभी मरकुस के अंदर धीरे धीरे एक प्रकार का जो है उनके अंदर एक प्रकार का विचार आया என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை. उनके अंदर क्या हुआ मालूम नहीं இப்பொழுது ஒருவர் இந்த வசனத்தை வாசியுங்கள். अभी एक वचन तो आप पढ़िएगा 13வது அதிகாரம் 13வது வசனம். और 13वां अध्याय का 13वां वचन को पढ़िएगा पौलुस और उसके साथी हम्म पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पीरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। யோவான் என்னும் மறுபேர் கொண்ட மார்க்கு அவர்களை விட்டு பிரிந்து எருசலேமுக்கு திரும்பி போனார். देखिएगा यहाँ पर जो यूहन्ना जो मरकुस है वो उनसे अलग होकर के वो यरूशलेम लौट आया। ஊழியத்திலே தொடர்ந்து ஓடி இருக்க வேண்டிய மார்க்கு अभी सेवकाई में आगे इन लोगों के साथ और नए क्षेत्र में जाके सेवा करना चाहिए था इस मरकुस को। இரண்டு பெரிய ஊழியர்களுக்கு உதவிக்காரனாய் இருந்த மார்க்கு दो बड़े बड़े प्रभु के दासों को सेवक लोगों को मददगार के रूप में सेवा करने वाला ये मरकुस ஆவியிலே வைராக்கியமாய் தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஆரம்பித்திருந்த மார்க்கு और जो शुरुआत में बहुत दूर के साथ अपना सेवकाई को शुरू किया वो मरकुस தேவனுக்காக எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று புறப்பட்ட மார்க்கு और परमेश्वर के लिए कुछ बनाना है कुछ करना है करके दूर रखने वाला मरकुस இரண்டு நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த ஊழியர்களோடு இணைந்து பயணப்பட்ட மார்க்கு दो अनुभवी प्रभु के दासों के साथ अपना सेवकाई को शुरू करने वाला मरकुस இன்றைக்கு ஊழியத்தை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு திரும்பி போகிறார். अभी वो सेवकाई को छोड़ के बड़े बड़े अगुओं को छोड़ के वो अपने घर जो यरूशलेम है वहां पर लौट जा रहा है। இது மட்டுமல்ல, न केवल इतना है இப்படியே பவுலும் பர்னபாவும் தனியாக ஊழியம் செய்கிறார்கள். और उसके बाद पौलुस और बरनबास जो है अलग से अकेले वे सेवा करते जा रहे हैं। மார்க் ஊழியத்திலிருந்து பாதியிலே போனது பவுலுக்கு மிகுந்த மனவேதனையை உண்டாக்கியிருந்தது. और पौलुस जो है पौलुस के अंदर बहुत दुख को पैदा कर दिया। मरकुस जो है हमें आधा जो है जगह में छोड़ के वापस सेवकाई को छोड़ दिया। பவுலினால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. पौलुस जो है उसको स्वीकार नहीं कर सका। எத்தனையோ பொறுப்புகளை கொடுத்திருந்தோமே, और हम लोग जो है कितने सेवकाई के जिम्मेवारी उनको दिए थे உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி இந்த ஊழியத்தை கொடுத்திருந்தோமே. और वो मरकुस जो है वो ईमानदार सच्चा व्यक्ति समझ के सेवकाई में क्या क्या हमने उनको नहीं இவன் दिया। நம்மோடு உதவிக்காரனாக கடைசி வரை வருவான் என்றல்லவா நம்பி இருந்தோம். हम लोग जो है ये ना आशा करते थे कि ये आखिरी तक इस दौड़ में हमारे साथ रहेगा हमारे संग रहेगा என்று சொல்லி பவுலுக்கு மிகுந்த கோபம் உண்டானது. और इसलिए पौलुस के अंदर मरकुस के बारे में बहुत गुस्सा उठा। என்ன நடந்தது? उसका नतीजा क्या हुआ? பர்னபாவும் பவுலும் தனியாகவே நடந்து போய் முதல் மிஷனரி பிரயாணத்தை முடிக்கிறார்கள். पौलुस और बरनबास जो है अकेले सारे शहरों में जहां-जहां उन लोगों ने सोचा था पहला मिशनरी का यात्रा को पूरा कर दिए। முடிந்துவிட்டு அவர்கள் அந்தியோகியா பட்டணத்துக்கு வந்து விட்டார்கள். फिर वे लोग अंताकिया चले आए। இப்பொழுது பவுலும் பர்னபாவும் தங்களுடைய இரண்டாவது மிஷனரி பிரயாணத்தை தொடங்குவதற்கு யோசிக்கிறார்கள். अभी पौलुस और बरनबास अपना दूसरा मिशनरी यात्रा के लिए अभी बैठ के सोच विचार कर रहे हैं। அப்பொழுது பர்னபா வந்து பவுலிடத்திலே ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். उस समय में बरनबास आके पौलुस से एक बात को रख रहा அந்த है। வசனத்தையும் வாசித்து விடலாம். उसको भी हम लोग देखेंगे। 16ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனம். और 16वां अध्याय प्रेरितों की काम की किताब उसका 16 अध्याय 37 वचन 16:37 16 का 37 पढ़िएगा। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है। அடுத்த वचனம் और उसका अगला दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही, अब टीमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी, इसलिए अब निकल कर लौटते चले जाओ। और 38 हो गया 39 और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर युवती की नगर से चले जाए। என்ன நடந்தது? वो 16 का ना 16 का 37 38 39 हां 7 38 39. हां परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा। नहीं सॉरी 15 16 अध्याय नहीं 15 अध्याय वही हम देख रहे हैं कि
15 अध्याय 37 से 15 का 37 से 39 तक पढ़िए। बरनबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। அங்கே என்ன நடக்கிறது? 39 अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। जी, இந்த முதலாவது மிஷனரி பிரயாணம் முடிந்து अभी पहला मिशनरी यात्रा पूरा हुआ। இரண்டாவது மிஷனரி பிரயாணத்தை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக अभी दूसरा मिशनरी यात्रा आरंभ करते समय में ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலே किसी संदर्भ में மார்க்கு பர்னபாவை சந்தித்திருக்கிறான். अभी मरकुस जो है वो बरनबास से भेंट किया है, ஏனென்றால் அவர்கள் உறவினர்கள். क्योंकि बरनबास और मरकुस दोनों रिश्तेदार हैं। அப்பொழுது மார்க்கு ஏதோ சில காரியத்தை பர்னபாவிடத்தில் பேசி இருக்கிறான். अभी मरकुस जो है कुछ बातों को बरनबास ने कुछ बातों को बोला है। நான் அப்போது ஊழியத்தை விட்டு வந்து விட்டேன். मैं उस समय में आप लोगों को आधा छोड़ के मैं वापस चले आया। இனிமேல் மீண்டும் உங்களோடு இணைந்து கொள்ளுகிறேன் என்று கேட்டிருக்கிறான். अभी दोबारा दूसरा मिशनरी यात्रा में मैं आप लोगों के साथ देना चाहता हूं करके मरकुस अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। இப்பொழுது அவர்கள் இரண்டாவது மிஷனரி பிரயாணத்தை துவங்கும் போது अभी दूसरे मिशनरी यात्रा के लिए जो योजना बनाते हैं पौलुस और बरनबास, பர்னபா பவுலிடத்திலே சொல்லுகிறான், अभी बरनबास ने पौलुस से कहा நம்ம மார்க்கையும் கூட்டிட்டு போனோம். अभी इस बार भी हम लोग मरकुस को भी साथ में ले जाएंगे, वो हमारा सहकर्मी रहेगा। உடனே பவுலுக்கு கோபம் வந்து விட்டது. अभी पौलुस को बहुत गुस्सा उठा। முதல்லயே நீதான் சொல்லி கூட்டி வர சொன்ன. देखो पहले भी तुम भी बोला था मरकुस हमारे साथ जाएगा, अच्छा रहेगा करके। அப்பயே சரிப்பட்டு வர மாட்டான்னு நான் யோசிச்சேன். अभी उसी समय में मैंने सोचा था कि ये साथ नहीं देने वाला है, या आधा आधा में जो छोड़ के चला जाएगा। அவனை நம்பி நிறைய பொறுப்புகளை வர கொடுத்திருந்தோம். और वो उनके ऊपर भरोसा करके क्या क्या जिम्मेदारी उनको नहीं दिए। ஆனா அவன் பம்பிலியாவுல இருக்கும்போது நம்மளை விட்டுட்டு திரும்ப ஓடி और போயிட்டான். बंगलिया देश में वो हम लोग को छोड़ के वापस चला गया। இப்ப அவனை திரும்ப நீ கூட்டிட்டு போக சொல்ற. अभी दोबारा उनको लेके जाए, இது சரிப்பட்டு வராது. नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा। பர்னபாவும் பவுலும் இப்போ சண்டையிட்டுக் கொள்ளுகிறார்கள். अभी पौलुस और बरनबास में तनाव हो गया, கடுமையான வாக்குவாதம் और உண்டானது. दोनों के बीच में बहुत बड़ा तनाव हो गया। கடைசியில என்ன நடந்தது? अभी आखिरी में क्या हुआ? பர்னபாவும் பவுலும் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரிந்தார்கள். अभी पौलुस और बरनबास दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। கொஞ்சம் இந்த சம்பவத்தை யோசித்து பாருங்கள். जरा सा इस घटना को ध्यान दें। ஆவியிலே ஆரம்பம் பண்ணின மார்க்கு अभी आत्मा में शुरू किया था मरकुस, நல்ல முயற்சி எடுத்து ஆரம்பம் பண்ணின और மார்க்கு बहुत अच्छा प्रयास करके अपने आत्मिक दौड़ को शुरू किया हुआ मरकुस ஏன் பாதியிலே பின்னிட்டு போனார்? क्यों आधा दौड़ में उन लोग को छोड़ के अपने घर को वापस लौट गया? அதற்கான காரணம் அங்கே சொல்லப்படவில்லை. और उसका कारण यहाँ पर नहीं बतलाया गया है। 13ஆம் அதிகாரத்திலே ஏன் மார்க்கு போனார் என்று சொல்லப்படவில்லை. पर यहाँ पर 13वां अध्याय में मरकुस क्यों अपने घर लौट के चले आया वो नहीं लिखा है। என்னுடைய கற்பனையிலே நான் யோசித்து பார்க்கிறேன். मैं अपनी कल्पना में मैं इसको ऐसा देखता हूँ, ஒருவேளை மார்க்கு யோசித்திருக்கலாம், शायद मरकुस ऐसा सोचा होगा, நான் வாலிப பிராயத்திலே இருக்கிறேன், मैं जवानी में हूँ, என்னை போன்ற வாலிபர்கள் எல்லாம் உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். अभी मेरे जैसे जो अन्य जवान है वो संसार का और जो है आनंद मजा ले रहा है। என்னை போன்ற வாலிபர்கள் உலகத்திலே நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறார்கள். मेरे जैसे जवान लोग संसार में देखो ऊंचे ऊंचे अच्छे जगह में हैं। நான் மட்டும் இந்த ரெண்டு வயசானவங்க கூட ஒரு ஜோல்னா பைய மாட்டிக்கிட்டு ஊழியத்துக்கு போணுமா? क्या मैं ये दोनों बुढ़ों के साथ मिलके जो पौलुस और बरनबास दोनों बुढ़ा के साथ मिलके हमको अपनी जवानी को गंवाना है क्या? இவங்க நினைச்ச நேரம் ஃபாஸ்டிங் போடுறாங்க. ये लोग जब मन चाहे तब तुरंत बोल देंगे कि फास्टिंग है, उपवास है। விரும்பின சாப்பாடு கிடைக்கிறது இல்ல. मैं जो जवानी में हूँ, मैं जो चाहूंगा वो खा नहीं पा रहा हूँ। எல்லாரையும் மாதிரி படம் பார்க்க முடியல.
और अन्य लोगों के जैसे फिल्म नहीं देख पा रहा हूँ, எல்லாரையும் மாதிரி ஜாலியா விளையாட முடியல. अन्य लोगों के जैसे खेल कूद में नहीं जा पा रहा हूँ। வாலிப பிராயத்துல உலகத்தை அனுபவித்திருக்க வேண்டிய நான் जवानी उम्र में संसार का आनंद को लेना चाहिए இந்த था। ரெண்டு வயசானவங்க கூட மாட்டிக்கிட்டேன். अभी ये दोनों बुड्ढों के बीच में फंसे हुए हैं। இவங்க கூட இருந்தோம்னா यदि इन दोनों बुड्ढों के साथ हम உலகத்தை रहेंगे, அனுபவிக்க வேண்டிய வயசுல हम संसार का जो आनंद उठाने का इस उम्र எதையுமே को- அனுபவிக்காம अभी सब कुछ हमको देंगे, வயசான தாத்தாவாயிருவோம். अभी हम भी बुढ़े हो जाएंगे। அதனால கொஞ்சம் உலகத்தை போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம்னு சொல்லி इसलिए अभी हम जवानी में क्या करेंगे, थोड़ा संसार में जाएंगे, संसार का आनंद भी लेंगे, हवा भी लेंगे, फिर हम आके सेवा में जुड़ जाएंगे। மார்க் திரும்பி போயிருப்பான் என்று நான் யோசிக்கிறேன். मैं इस प्रकार सोच रहा हूँ कि मरकुस इस प्रकार विचार रखा होगा। பல நேரங்களிலே ஊழியத்தில் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் நமக்கும் வரும். सेवकाई में हमारे अंदर भी इस प्रकार का विचार आने का संभावना है। நானும் ஒரு ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறேன். भैया एक जो है आईटी कंपनी में काम करने वाले हैं, என்னோடு இருப்பவர்களை நான் பார்க்கும்போது और जब इनके साथ जो साथ काम करने वालों को देखते சாட்டர்டே समय, சண்டே நாளே அவங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் தான். और शनिवार रविवार आ गया तो वो लोग जो बोलते हैं कि हम लोग बहुत आनंद मनाते हैं, ஆனா சாட்டர்டே சண்டே நாளே நமக்கு ஊழியம் தான். और इनके लिए शनिवार रविवार पूरा सेवकाई। சில நேரத்துல யோசிக்கலாம், कभी कभी हमारे अंदर विचार आएगा, என்ன ஊழியம் இது, क्या सेवा है, எந்த நேரமும் ஜெபம், और हमेशा प्रार्थना, எந்த நேரமும் வேதம், हमेशा बाइबल का अध्ययन, ஒண்ணும் பண்ண முடியல, और कुछ काम नहीं कर पाते, குடும்பத்தோட இருக்க முடியல, और ना परिवार के साथ समय दे पाते நினைச்சதை हैं, செய்ய முடியல. और जो मन चाहता है वो नहीं कर पाते हैं। பைபிள் நிறைய கட்டளைகள் போட்டிருக்கு और நமக்கு. बाइबल में बहुत से विधियों को या आज्ञाओं को दिया है परमेश्वर, அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு உலகத்தோட இருந்துட்டு வந்துடலாம்னு யோசிக்கலாம். इसलिए थोड़े दिन के लिए बाइबल को बंद करके किनारे में रखते हैं और संसार का आनंद लेके वापस चले आए। அது ஒருவேளை எனக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கலாம். और शायद संसार में जाने से संसार हमको शायद आनंद दे भी सकता है। ஆனால் அப்படி நான் போவேனானால் यदि मैं वो संसार का आनंद का हवा लेने के लिए जाऊं तो என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறும், मेरी इच्छा तो पूरी होगी இந்த உலகத்தின் விருப்பம் நிறைவேறும், और संसार का भी इच्छा पूरा होगा, சத்துருவின் விருப்பம் நிறைவேறும். शैतान की इच्छा पूरी ஆனால் होगी, தேவன் என்னை கொண்டு வைத்திருக்கிற நோக்கம் நிறைவேறாது. परंतु परमेश्वर जो मेरे लिए रखा है उसको मैं खो जाऊंगा। மிஷனரிகளாக, इसलिए मिशनरी के रूप திருச்சபை में தலைவர்களாக, और आप जो है कलीसिया ஊழியர்களாக, के सेवक लोग கூடி வந்திருக்கிற உங்களுக்குள்ளும் और आप जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए आप भी, பல நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகிற போராட்டங்களை பார்க்கும்போது जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है, कठिनाई आती है, परेशानी आता है, உலக பிரகாரமான மனிதன் சந்தோஷமாக இருக்கிறானே என்று தோன்றும். और वो हम संसार को देखते हैं, देखो ये लोग कितना आनंदमय जीवन जी रहा करके कभी कभी ऐसा विचार हमारे मन में आने का संभावना है। அவர்களுடைய வாழ்க்கையையும் நம்முடைய வாழ்க்கையையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டிருப்போமானால் कभी कभी हम लोग जो है उनका जीवन और हमारा जीवन का हम तुलना करके हम देखने लगते हैं। தொடர்ந்து முன்னேறி ஓட வேண்டியவர்கள் अब यदि हम लगातार उनके साथ हम अपने आप को तुलना करते रहेंगे तो நாமும் கூட மார்க்குவை விட்டு பின்னிட்டு திரும்பி எருசலேமுக்கு போய் விடுவோம். और यदि तुलना करते रहेंगे हम अपने दौड़ में विचलित हो जाएंगे, या मरकुस जैसे हम भी घर लौट के वापस विपरीत दौड़ने लगेंगे। மார்க்கு எருசலேமுக்கு போனான் என்பது எதை குறிக்கிறது? मरकुस यरूशलेम वापस चला गया, ये किस बात को दर्शाता है? எங்கிருந்து ஆரம்பித்தானோ அதே இடத்திற்கு திரும்பி अभी போய்விட்டான். इसका मतलब जहां उसने अपना दौड़ को शुरू किया वहीं पर वापस लौट के आ गया। உங்களை எது பின்னோக்கி இழுக்கிறது? अभी आपको कौन सी बात पीछे की ओर आकर्षित करता है, உங்களை எது வழி விலக और பண்ணுகிறது? आपको कौन सी बात जो है विचलित करता है? மார்க்குவை எது வழி விலக பண்ணுகிறது என்று தெரியாது. और मरकुस को कौन सी बात विचलित किया हमें नहीं पता। தேமாவை உலகம் பின்னிட்டு இழுத்து கொண்டு போனது. और देमास को संसार ने आकर्षित करके पीछे विपरीत में दौड़ने को विवश कर दिया। ஆனால் தேமா மீண்டும் வந்தானா என்று தெரியாது. हमें मालूम नहीं कि देमास ने वापस लौट के सेवकाई को किया या नहीं किया, मालूम नहीं। மார்க்கு பின்னிட்டு போனான் உண்மைதான். जरूर मरकुस ने जब विपरीत में दौड़ के यरूशलेम में वापस चला तो गया, ஆனால் சில நாட்களுக்குள்ளாக மார்க்குவுக்குள் ஒரு மனம் திரும்புதல் உண்டானது. परंतु मरकुस के अंदर एक मन फिराव के आत्मा कार्य किया, மீண்டுமாக பர்னபாவிடத்திலே வருகிறான். और फिर वो बरनबास के पास आता है। நான் ஊழிய
ஊழியத்திலே வருகிறேன் என்று वो கேட்கிறார். मैं जरूर पीछे लौट के चला गया, गलती कर दिया, परंतु अभी मैं आगे फिर सेवकाई में आना चाहता हूँ। தன்னுடைய தவறை ஒத்துக்கொள்ளுகிறார். वो अपनी गलती को एहसास करके माफी मांगता है மனம் திரும்புகிறார். और मन फिरा மீண்டுமாக ஓட்டத்தை தொடங்க ஆரம்பிக்கிறார். और फिर अपना दौड़ को, जो आत्मिक दौड़ है, उसको आरंभ किया। அப்பொழுது நல்ல ஊழியனாகிய பவுல் மூலமாக ஒரு எதிர்ப்பு வருகிறது. और वहां पर पौलुस जो है अच्छा सेवक के द्वारा से एक विरोध आ रहा है। சில நேரங்களிலே நாம் பின்னிட்டு போகும்போது जब कभी हमारे आत्मिक जीवन में या सेवकाई के जीवन में पीछे की ओर विपरीत दौड़ने लगते हैं, ஊழியத்திலிருந்து தேவனை விட்டு பின்னிட்டு சில நேரங்களிலே வழி விலகும் போது जब हम जो बुलाहट है, जो दौड़ है, उससे हम विचलित जब होते हैं, மனிதர்கள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். तो वापस आने का प्रयास करेंगे तो मनुष्य जरूर इंसान हमको स्वीकार नहीं சக करेगा। ஊழியர்கள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ள हमारे மாட்டார்கள். सहकर्मी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। நம்மை நடத்தினவர்கள் நம்மை நம்ப மாட்டார்கள். जो हमारे अगुवाई किए अगुवे हमको स्वीकार नहीं करेंगे। நம்மை உருவாக்கினவர்கள் நம்மேல் வைத்த நம்பிக்கையை இழந்து போவார்கள். जिन्होंने हमें सेवकाई में बढ़ाया, वो भी हमारे ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे। அதை போலத்தான் அன்றைக்கு பவுல் யோசித்தார். उसी प्रकार उन दिनों में पौलुस जो है बरनबास के बारे में सोचा था। ஆனால் மார்க் சோர்ந்து போகவில்லை. मरकुस के बारे में सोचा। मरकुस फिर भी वहां पर निराश नहीं हुआ। மார்க் சோர்ந்து போகாமல் தன்னுடைய ஊழியத்தை பர்னபாவோடு கூட தொடர்கிறார். फिर दोबारा अपनी सेवकाई का दौड़ को मरकुस ने बरनबास के साथ मिलके दौड़ना शुरू किया। மார்க்கும் பர்னபாவும் இணைந்து சீப்புரு தீவுக்கு போனார்கள். और साइप्रस जो है उस शहर में मरकुस और बरनबास दोनों मिलके सेवा कर रहे हैं। மார்க் தன்னுடைய ஊழியத்தை மீண்டும் और தொடர்ந்தார். मरकुस अपना सेवकाई को दोबारा शुरू किया பின்னானவைகளை மறந்து और पीछे की बातों को भूल के முன்னானவைகளை நாடி आप आगे की बातों के वो ध्यान ஒரு करते புதிய हुए ஓட்ட மார்க்குக்கு और ஆரம்பமானது. वहां पर मरकुस के लिए एक नया दौड़ शुरू हुआ। பின்னர் பேதுருவோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். और उसके बाद पतरस के साथ अपने आप को जोड़ लिया। பேதுரு படிப்பறிவில்லாதவன். और पतरस जो है अनपढ़ व्यक्ति है। பேதுருவுக்கு பல இடங்களிலே மொழிபெயர்ப்பாளராக மார்க் செயல்பட்டான் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது. और इतिहास इस प्रकार बतलाता है, पतरस के लिए अनुवादक के रूप में मरकुस ने सेवा किया। பேதுரு தன்னுடைய முதலாம் நிருபத்திலே எழுதும்போது जब पतरस ने अपना पहला जो है पत्री को जब लिखता है, पहला पतरस की किताब என்னுடைய को, குமாரனாகிய மார்க் என்று वो எழுதுகிறார். लिखता है मेरा पुत्र मरकुस करके वो लिखता है। பவுல் மார்க்கை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டிருந்தான். जब पौलुस ने मरकुस को बोल दिया कि हमको ये नहीं चाहिए करके छांट दिया था, அவள் மன வேதனையினாலே அப்படி செய்திருந்தார். जरूर पौलुस ने इसलिए इसको छांट दिया था कि मन में बहुत दुखित होकर के। ஆனால் மனம் திரும்புதலை ஒருபோதும் தள்ளிவிடாத நம்முடைய தேவன் और जो है जो व्यक्ति मन फिरा का अनुभव रखा हुआ है, उस व्यक्ति को कभी भी वो इनकार करने वाला नहीं है। ஒரு முறை வழி விலகினதினாலே தள்ளிவிடாத தேவன். और एक बार विचलित होने के चलते परमेश्वर हमें वो जो है हमें दूर नहीं करता, परंतु मन फिराव का अनुभव देके फिर हमें वो जो है उसी काम को हमारे हाथ में மனம் देता है। திரும்பி மீண்டும் வரும்போது சேர்த்துக் கொள்ளுகிற தேவன். जब हम मन फिरेंगे, जब हम अपने पाप को अंगीकार करेंगे, फिर से हमको जोड़ने वाला प्रभु है। மார்க்குவை பர்னபாவோடு கூட இணைத்தார். और उसके बाद मरकुस को परमेश्वर ने बरनबास के साथ जोड़ दिया। பின்னாட்களிலே பேதுருவோடு கூட இணைத்தார். और उसके बाद पतरस के साथ परमेश्वर ने मरकुस को जोड़ा। பேதுருவிடத்திலிருந்து அவருடைய ஊழியத்தில் நடந்த अनेक காரியங்களை மார்க் கேட்டு அறிந்து கொண்டான். और पतरस के द्वारा सेवकाई में जो बड़े-बड़े काम हो रहा है, उसके बारे में मरकुस सुन के और जो है समझ गया। அப்படியாக மார்க் கேட்டு அறிந்து கொண்ட விஷயங்களை வைத்துத்தான் और जो कुछ मरकुस ने जो है पतरस के द्वारा सुना था, उसको लेकर के मरकुस रचित सुसमाचार को उसने लिखा। அவர் புறஜாதிகளுக்கும் இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி और जो है न केवल जो है यहूदियों के बीच में, परंतु अन्य जातियों के बीच में भी ये सुसमाचार सुनाया जाना है करके மார்க் ஒரு சுவிசேஷத்தை எழுதினார். அதுதான் மார்க் எழுதின और சுவிசேஷம். मरकुस के द्वारा पतरस से जो भी बातों को उसने सुना, उसको लिखा था, वही है मरकुस रचित सुसमाचार। இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ मेरे ஜனங்களே, सुनने वाले मेरे प्रिय
लिए जो है सहकर्मी, உங்களுடைய ஓட்டத்திலே अनेक நேரம் நீங்கள் வழி விலகி போயிருக்கலாம். आप अपने दौड़ में कई बार विचलित हुए होंगे, ஒருவேளை நீங்கள் பின்னிட்டு பார்த்திருந்திருக்கலாம். या आप जो है विपरीत दौड़ के आने का जो है दौड़ने का प्रयास किए होंगे, அல்லது எதற்கு இந்த ஊழியம் என்று சோர்ந்து போய் இருந்திருக்கலாம். कभी आप निराश हुए होंगे कि मेरे लिए क्यों ये सेवकाई है करके आप निराश हो गए होंगे। பின்னிட்டு போன தேமாக்கு என்ன நடந்தது என்று நமக்கு தெரியாது. जो विपरीत दौड़ने वाला तेमास के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, ஆனால் பின்னிட்டு போன மார்க்கு திரும்பி வந்தபோது जो विपरीत दौड़ने वाला मरकुस जब फिर से उस दौड़ को शुरू करने के लिए जो निर्णय लिया था, மீண்டுமாக தேவன் மார்க்குவை எடுத்து பயன்படுத்தினார். फिर से परमेश्वर ने मरकुस को लेकर इस्तेमाल किया। மார்க்குவின் பெயரிலே ஒரு புத்தகமும் நம்முடைய வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मरकुस के नाम पर एक बाइबल में किताब भी है, मरकुस रचित सुसमाचार। हालेलुया हालेलुया। உங்களுடைய பின்னான வாழ்க்கையை நினைத்து கவலைப்படாதிருங்கள். इसलिए पिछले दिनों में जो दौड़ आपने दौड़ा, विपरीत दौड़ या विचलित दौड़, उसको लेकर के आप निराश न हो। பல நேரங்களிலே நீங்கள் சோர்ந்து போய் தேவனை விட்டு வழி விலகி இருக்கலாம், பின்வாங்கி இருக்கலாம். और कई बार परमेश्वर को छोड़ के विपरीत दौड़ या विचलित दौड़ आपने दौड़ा होगा। உங்களுடைய ஓட்டம் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படட்டும். इसलिए आज इस समय में आपका दौड़ नया किया जाए। மார்க்குவை போல திரும்பி வரும்போது और जब आप मरकुस जैसे पुनः अपने आप को जो है नया दौड़ के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे, உங்களுடைய பெயரும் தேவனுடைய ஞாபக புத்தகத்திலே எழுதப்படும். जरूर आपका भी नाम परमेश्वर का जो विज्ञान का बुक किताब है, याद करने का किताब है, उसमें लिखा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। அந்த மார்க்கு பவுலோடு மீண்டும் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். उसके बाद न केवल इतना है, पौलुस के साथ में मरकुस आके अपने आप को जोड़ लिया பவுல் மார்க்குவை மன்னித்தார். और उसके बाद पौलुस ने मरकुस को क्षमा किया। என்ன நடந்தது? 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம். और दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் 11வது வசனம் और दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 11 वचन வாசிக்கலாம். पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस 4 का 11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का। யார் சொல்லுவது? अभी कौन बोल रहा है मरकुस के बारे में? பவுல் சொல்லுகிறார். पौलुस बोल रहा ஒரு है। காலத்திலே மார்க் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்ன பவுல் एक समय था, उस समय में पौलुस ने कहा मरकुस मुझे नहीं चाहिए, பின்வாங்கி போனவன் என்று சொன்ன और பவுல் ये पीछे की ओर मुड़ के जाने वाला इंसान है, இவன் நம்பிக்கைக்குரியவன் அல்ல என்று சொன்ன ये பவுல் भरोसामंद व्यक्ति नहीं है करके कहने இன்றைக்கு वाला அதே पौलुस மார்க்குவை பார்த்து சொல்லுகிறார். आज उसी मरकुस को लेके देख के कहता है, தீமோத்தேயுவை நான் மரிக்கப் போகிறேன். हे तीमुथियुस मैं अभी मरने जा रहा हूँ, ஆனால் நீ வரும்போது மார்க்குவை உன்னோடு கூட கூட்டிக் கொண்டு வா. मेरे अंदर एक लालसा है, जब तीमुथियुस तुम आएगा तुम अपने साथ मरकुस को लेके आना, நான் அவனை பார்க்க விரும்புகிறேன். मैं मुझसे मिलना चाहता हूँ। ஏன் தெரியுமா? क्यों? அவன் தேமாவை போல பின்வாங்கி போனவன் அல்ல. देमास के जैसे वो संसार का सदस्य नहीं बना है। ஒரு முறை அவன் பின்வாங்கி போனான், உண்மைதான். जरूर मरकुस एक बार विचलित हुआ या विपरीत दौड़ के चला गया, ஆனால் மீண்டும் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து அவன் திரும்பி வந்தான். परंतु दोबारा अपने गलती को एहसास किया, मन फिरा, फिर उस दौड़ में अपने आप को लगा लिया। பர்னபாவோடு இணைந்து ஊழியத்தை தொடர்ந்தார். बरनबास के साथ मिलके वो जो अपना दौड़ को शुरू कर दिया, பேதுருவோடு இணைந்து ஊழியத்தை और தொடர்ந்தார். पतरस के साथ मिलके वो सेवकाई का दौड़ को दौड़ा। மார்க் என்ற சுவிசேஷம் இன்றைக்கு சபைகளுக்கு வாசிக்கப்படுகிறது. और आज मरकुस रचित सुसमाचार में से कई वचन को हम लेके प्रचार करते हैं। அவன் ஊழியத்தில் எனக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவன். यहाँ पे लिखता है पौलुस वो सेवकाई में मेरे लिए बहुत काम का है। हालेलुया हालेलुया। நம்முடைய பின்மாற்றம் சில நேரங்களிலே மனிதர்களிடத்திலே நம்மை நம்பிக்கையற்றவர்களாக மாற்றலாம். जरूर हमारा जो पीछे मुड़ के जाना, वो मनुष्य को हमारे ऊपर भरोसा रखने से उन्हें जो है मनुष्य लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ஆனால் சோர்ந்து போகாமல் நாம் ஓட்டத்தை தொடரும் போது परंतु जो है पीछे की वो जो मुड़ के विपरीत दौड़े हैं, आज मन फिरे, फिर हम उस दौड़ में आगे आए तो परमेश्वर हमें क्षमा करके उस दौड़ में हमें मदद करेगा। பின்வாங்காமல் ஓடும்
ஓடும்போது जब हम लोग पीछे की ओर मुड़े आगे की ओर जाए, வழி விலகாமல் ஓடும்போது जब हम लोग विचलित हुए बिना हम दौड़े முன் நிலைமையை காட்டிலும் और हमारे पिछले दिनों से ज्यादा பின் நிலைமை மகிமையுள்ளதாய் और இருக்கும். आगे की बातों में बहुत महिमा में होगा। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. உங்களுடைய ஊழியத்தை ஆண்டவர் மீண்டும் மகிமையுள்ளதாக்குவார். और आज परमेश्वर आपका सेवकाई में एक नया और महिमा में बात को आने वाले दिनों में करेगा। இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக் इसलिए கொள்ளுங்கள். आज आप एक निर्णय ले लें। நான் வழி விலகாமல் ஓடுவேன். इसलिए मैं विचलित हुए बिना मैं நான் दौड़ूंगा। பின்னிட்டு பார்க்காமல் और ஓடுவேன். मैं विपरीत दौड़ नहीं दौड़ूंगा। இதற்கு முன்னர் ஒருவேளை பின்னிட்டு பார்த்திருந்தாலும் शायद इसके पहले आपने पीछे की ओर मुड़ के देखा होगा, இன்றைக்கு என்னுடைய ஓட்டம் மீண்டும் தொடங்கட்டும். परंतु आज मेरा दौड़ आत्मिक दौड़ एक नई रीति से शुरू होने वाला ஜெபத்திலே है। இணைந்து உங்களை அர்ப்பணியுங்கள். और इसलिए आज ये प्रार्थना में मिल के आप प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें। கர்த்தர் தாமே உங்களை परमेश्वर ஆசீர்வதிப்பார். आपको आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बर्ताव किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कोई थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देमास ने हालेलुया संसार को प्रिय जानकर हालेलुया चला गया। हालेलुया। लेकिन हालेलुया मरकुस ने हालेलुया अपनी दौड़ को शुरू किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, शायद हम देमास की नाई नहीं परंतु मरकुस की नाई होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हम संसार को प्रिय जान के हालेलुया अपनी बातों में हालेलुया, हालेलुया कई बार हम मुड़े होंगे। हालेलुया पीछे मुड़ के हालेलुया हम सोचते होंगे। कई बार हमारे जीवन में हमारे व्यक्तिगत बातों को लेके, सामाजिक बातों को लेके, पारिवारिक बातों को लेके हालेलुया हमारे जीवन में निराशा होने के चलते कई बार हम वापस चले आए होंगे। लेकिन इस वक्त में हम प्रभु के सामने आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु हालेलुया। हम अपने दल के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सहकर्मी के लिए कितने संघर्ष का कारण बने हैं प्रभु जी। हालेलुया। परंतु हालेलुया प्रभु हम मन फिराने के लिए तैयार हैं। हम मन फिराने के लिए तैयार हैं। थोड़ी समय अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। किस जगह में हालेलुया हम अपने सहकर्मी के लिए, अपने दल के लिए हालेलुया ओ हालेलुया मुड़कर हम पीछे चले गए। हालेलुया कई बार हालेलुया, हालेलुया हमारे चलते बहुत संघर्ष को उठाना पड़ा। हालेलुया लेकिन इस वक्त प्रभु का वचन हमें बताता है हालेलुया परमेश्वर के पास दौड़ के चले आओ। हालेलुया प्रभु के पास मन फिराओ। हालेलुया परमेश्वर फिर से वो हमें खड़ा करके हमें हालेलुया प्रिय सेवक बनाने के लिए चाहता है। जिस दौड़ को हमने हालेलुया परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया उसको हमें पूरा करना है। हालेलुया ओ प्रभु धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया ओ प्रभु धन्यवाद। थोड़ी देर हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया हम सब कोई खड़े हो जाए। बैठे बैठे शायद आपके जीवन में थकावट महसूस होती होगी। हालेलुया, हालेलुया इस वक्त में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया दो जन एक दूसरे के हाथ को पकड़ के सीधे हो जाए। हालेलुया दोनों हाथों को पकड़ के हालेलुया दो जन हालेलुया एक दूसरे के हाथों को पकड़े। हालेलुया और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अपने बहन के लिए प्रार्थना करें, भाई के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु हालेलुया हमारे